Good evening, everyone. Welcome back to our 3 days webinar series on recession-proof career in post-COVID world. I hope you must have attended the webinars held on 1st and 4th August, which was related to CAT exam as well as CET respectively. Today, 6th August, we are going to discuss about banking opportunities, bank career, right? So one by one, we will discuss all the opportunities which are coming in this in the coming months, October, November, December. Okay, so guys, before we begin, in case your connection breaks down during the webinar, hit back the webinar link to resume. You can type your question using the question mark button given on the side panel. Your questions will be answered in the end, and if possible, use headphones for better audio output. Okay. My name is Sagar Sonone, and I'm the faculty of Quant and Reasoning in Time Institute, Nasik. So let's start the session. Guys, today's agenda is something like this. First, we will discuss the overview of banking sector in India. जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से different types of banks होते हैं, public sector banks, private banks, small finance banks, RRBs and so on. So that आपको एक idea मिल जाएगा कि banking sector exactly क्या होता है, ठीक है? Next, then we will discuss about post-COVID opportunities in banking sector. Okay, which are the exams coming in the next months? How to prepare for the exams that we will discuss. Selection process of bank exams, which are the different phases in the selection process of this bank exam that we will discuss. Then why banking is recession-proof and evergreen for job aspirants, right? Why I'm calling it as recession-proof career. It is very secure career for you. Okay, that we are going to discuss. Then how to prepare for the bank exams, how to study, how to make the timetable and all that we will discuss. And last, teaching methodology in the Time Institute Nasik we are going to discuss, and the course which we are offering for you, Bank PO course, what are the different features of that course that we will discuss at the end. Okay, and last हम question answers भी आपके लेंगे, ठीक है? Sure. So let's start. First, we will start with the overview of banking sector in India. Okay? Public sector banks. That is, guys, what is the meaning of public sector banks? These are, देखो, कोई भी बैंक में अगर 50% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट का है तो उसको पब्लिक सेक्टर बैंक्स मानते हैं, राइट? तो इन इंडिया टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं. आई नो ये नंबर थोड़ा ज्यादा था पहले, बट बहुत सारी बैंक्स जो है वो अभी मर्ज हो गई है बड़ी बड़ी बैंक्स में, ठीक है? मैं ये भी बताऊंगा कौन सी बैंक में मर्ज हुई है. बट अगर आपको कोई पूछता है अभी हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर देयर इन इंडिया, योर आंसर शुड बी 12. ओके, चलो. नाउ दिस इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक. मैं अल्फाबेटिकली जाता हूँ, यानी कि कोशिश करता हूँ, ठीक है? बैंक ऑफ बड़ौदा, वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक. In Bank of Baroda, recently Vijaya Bank and Dena Bank got merged. ठीक है? तो अभी Vijaya Bank and Dena Bank ये Bank of Baroda में ही आ चुके हैं, ठीक है? Next, Bank of India, okay? Bank of Maharashtra, Canara Bank जिसमें recently Syndicate Bank जो है वो merge हो गया है. Then Central Bank of India, Indian Bank जिसमें Allahabad Bank जो है वो merge हो गया है, ठीक है? तो ये कितने बैंक्स थे? 6 बैंक्स टोटल. नेक्स्ट 6 बैंक्स भी देख लेते हैं. इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जिसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसमें आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हो गया है, एंड लास्ट में आता है यूको बैंक, राइट? सो दिस आर दी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स. फ्रेंड्स, जब आप कोई भी बैंक एग्जाम या आईबीपीएस क्लर्क हो या आईबीपीएस पीओ, राइट, इनमें से कोई भी एक एग्जाम देते हो तो इन्हीं 12 बैंक्स में से कोई तो एक बैंक आपको अलॉट किया जाएगा. आपको प्रेफरेंस पूछा जाता है जब आप फॉर्म फिल करते हो कि कौन सी बैंक आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखनी है, कौन सी सेकंड प्रेफरेंस पे रखनी है. उस हिसाब से आपको बैंक्स मेरिट के हिसाब से अलॉट की जाती है. इन्हीं 12 बैंक्स में से आपको कोई एक बैंक में जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, ठीक है?
ये हो गई पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बट इतनी ही बैंक्स है क्या इंडिया में? नहीं, देयर आर सो मेनी अदर कैटेगरीज ऑफ बैंक्स। लेट्स लुक एट इट वन बाय वन। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मतलब क्या? इसमें गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा नहीं है, राइट? देखो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मैंने बोला कि जिस बैंक में 50% से ज्यादा शेयर जो है वो गवर्नमेंट का होता है उसको हम पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं, राइट? प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो, इसका मतलब ये नहीं होता कि प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं, ऐसा नहीं है गाइस, राइट? ये शेयर की बात हो गई 50% से ज्यादा आया था। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो या कोई रीजनल रूरल बैंक हो, कोई भी बैंक हो, उसको कंट्रोल तो गवर्नमेंट इन द सेंस आरबीआई ही करता है, राइट? तो ये कंफ्यूज मत होने देना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वो अपना अपना काम चलाते हैं, ऐसे नहीं। उनको आरबीआई के रूल्स के हिसाब से ही चलना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो टोटल 22 है। मैं एक जल्दी से आपको एक लिस्ट दे देता हूँ। एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी मतलब क्या गाइस? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राइट? आईसीआईसीआई, ये फुल फॉर्म्स भी आपको पता होने चाहिए। सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक है बट आईसीआईसीआई का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आईसीआईसीआई मतलब इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, राइट? देन आईडीबीआई, आईडीबीआई मतलब क्या? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीएफसी ये रिसेंटली अभी भी ओपन हुआ है, मतलब अगर सारी बैंक्स में अगर देखा जाए तो ये न्यू बैंक है कंपेयर टू अदर बैंक्स, राइट? आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंडसइंड बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक, कारूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, नैनीताल बैंक, आरबीएल दैट इज रत्नाकर बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक एंड लास्ट में यस बैंक। ठीक है? तो ये इंडियन बैंक्स है, इंडिया की है, ठीक है? इनका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है, ठीक है? और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये हो गई 22। ये दो मेजर कैटेगरीज है फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अभी इसके अलावा भी कुछ और कैटेगरीज है, जैसे कि रीजनल रूरल बैंक। टोटल 43 रीजनल रूरल बैंक है। मैं सारे 43 की लिस्ट अभी जाऊंगा नहीं इतना डिटेल, आपको सिर्फ पता होना चाहिए हाउ मेनी रीजनल रूरल बैंक्स आर देयर, राइट? रीजनल रूरल बैंक जैसे नाम में लिखा है, ये रूरल एरियाज में ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक करके एक कैटेगरी होता है जो आपको 10 आपने देखा होगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। फॉरेन बैंक्स भी इंडिया में काम करती है, डिफरेंट डिफरेंट। आपके एरिया में जरूर कोई ना कोई फॉरेन बैंक होगा, शायद आपको पता नहीं होगा कि वो एक फॉरेन बैंक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, सिटी बैंक हो गया, एचएसबीसी हो गया, राइट? देयर आर सो मेनी 44 फॉरेन बैंक्स आर करंटली वर्किंग इन इंडिया, जिनका हेडक्वार्टर फॉरेन में है, ठीक है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जैसे यूके की बैंक है, सिटी बैंक जैसे यूएसए की बैंक है, ठीक है? ओके। तो फॉरेन बैंक्स के अलावा भी और कैटेगरी होती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। हर एक स्टेट का एक कोऑपरेटिव बैंक होता है, जैसे हमारे महाराष्ट्र का क्या है? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, राइट? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ऐसे 33 कोऑपरेटिव बैंक्स आपको देखने को मिलेगी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, हर सिटी में अगर आप देखते हो तो ये बैंक्स आपको देखने को मिल जाती है कोऑपरेटिव बैंक। जैसे नासिक की अगर मैं बात करूं, नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक, सारस्वत बैंक, शामराव विठल कोऑपरेटिव बैंक एंड सो ऑन, राइट? गाइस, ये जितनी भी मैंने बैंक्स बताई आपको, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंस, फॉरेन, स्टेट कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव, इन सारी बैंक्स में वैकेंसीज निकलती है और आपको इन सारी बैंक्स में जॉब करने का मौका मिल सकता है अगर आप ये पीओ बैंक पीओ कोर्स ज्वाइन करते हो। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी है, राइट? हर बैंक में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती है, जैसे कि अगर मैं एंट्री लेवल की बात करूं तो क्लरिकल, उसके ऊपर का एंट्री लेवल होता है ऑफिसर, जिसको हम प्रोबेशनरी ऑफिसर बोलते हैं। तो इतनी सारी बैंक से अगर आप टोटल काउंट करोगे, प्राइवेट सेक्टर की 22, पब्लिक सेक्टर की 12, ये 43, 10, 44, 33, 51, देयर आर सो मेनी बैंक्स वर्किंग इन इंडिया, राइट? इनकी अलग से एग्जाम होती है, हर एक कैटेगरी का अलग से एग्जाम होता है। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का आईबीपीएस कंडक्ट करता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करती है, रीजनल रूरल बैंक ये जो 43 बैंक्स आपके नंबर दिख रहा है उनका आईबीपीएस कंडक्ट करता है। तो ये सारी बैंक्स में आपको जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। नाउ पोस्ट कोविड अपॉर्चुनिटीज इन बैंकिंग सेक्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये मंथ चल रहा है अगस्त का। अभी
रिसेंटली आपने एक नोटिफिकेशन देखा होगा, आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन मिला है 2 दिन पहले। इनफैक्ट अभी ये टाइम शुरू हो गया है, अभी धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के जो नोटिफिकेशन है वो आना शुरू हो जाएंगे, राइट। जैसे कि अगर मैं पहले डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, मैंने अभी बात की आपसे कि क्लरिकल कैडर है जिसको सिंगल विंडो ऑफिसर भी बोला जाता है, ठीक है, असिस्टेंट्स भी बोला जाता है, ठीक है। नाउ इन PSBs stands for Public Sector Banks, SBI stands for State Bank of India, RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है, LIC, GIC, न्यू इंडिया, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है गाइस पब्लिक सेक्टर में, उनमें भी वैकेंसीज निकलती है। एंड RBI जो एक मॉनिटरी बॉडी है सारे बैंक्स का, उसमें भी असिस्टेंट्स का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर। मैं दिसंबर ये मंथ बोल रहा हूँ, ये एग्जाम का मंथ बोल रहा हूँ, इनके नोटिफिकेशन तो जल्दी ही आ जाएंगे, 2-3 मंथ्स पहले ही आ जाएंगे। ये दिसंबर में एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है, तो दिसंबर में अगर एग्जाम कंडक्ट की जाती है तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ना उसके ऊपर का मतलब अगर क्लरिकल के ऊपर थोड़ा सा आप जाते हो तो एंट्री लेवल ही है ये प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसको असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी बोला जाता है। नाउ ये पीएसबीज में अगेन मैंने अभी रिपीट किया, पीएसबी, एसबीआई, आरआरबी, इंश्योरेंस कंपनीज एंड आरबीआई, इन सब में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का पोस्ट निकलता है, राइट। गाइस अभी क्लरिकल में ही देख लो आप, क्लरिकल में पीएसबी का अलग से एग्जाम होगा, आरआरबी का अलग से एग्जाम होगा, क्लरिकल में इंश्योरेंस का अलग से एग्जाम होगा, क्लरिकल में ये आरबीआई का अलग से एग्जाम होगा। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज तो आपको क्लरिकल में ही मिल रही है, राइट। इसके अलावा प्रोबेशनरी ऑफिसर्स मतलब एग्जाम्स बहुत सारी होगी, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलेगी। इस एग्जाम में नहीं हुआ तो वो एग्जाम, वो एग्जाम में नहीं हुआ तो वो एग्जाम, राइट। कोई ना कोई एग्जाम जो है वो आपके लिए रेडी रहेगा, राइट। बहुत सारे अलग, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेते हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स लेते हो, उसमें ईयर में आपको 1 अपॉर्चुनिटी मिलती है सिर्फ, मतलब इस साल नहीं हुआ तो आपको नेक्स्ट ईयर की एग्जाम तक वेट करना पड़ता है। बट बैंकिंग में आपको बहुत एक बढ़िया चांस मिलता है, इतनी सारी एग्जाम्स होती है, जैसे कि आपका पीएसबीज में मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नहीं हुआ तो आप एसबीआई का क्लरिकल दो, क्लरिकल में नहीं हुआ तो आरआरबी का दो, आरआरबी का नहीं हुआ तो इंश्योरेंस का दो, इंश्योरेंस में नहीं हुआ तो आरबीआई का दो, राइट। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। नाउ इसके अलावा भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर करके एक पोस्ट होता है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर मतलब क्या, अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन उनके एड के हिसाब से, जैसे कि आईटी ऑफिसर के लिए लगता है बीई कंप्यूटर या बीई आईटी, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए लगता है बीएससी एग्री या बीटेक एग्री, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए लगता है एमबीए मार्केटिंग, राइट। आपका अगर एजुकेशन बैकग्राउंड उस हिसाब से, उस पोस्ट के हिसाब से है तो आप ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हो, ये भी दिसंबर में होता है। इसका सैलरी एंड ऑल ऑलमोस्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर के बराबर ही होता है। अगेन ये स्केल 1 का पोस्ट है, मतलब ऑफिसर लेवल का पोस्ट है, राइट। ये पीएसबीज में होता है और एसबीआई में भी कंडक्ट किया जाता है दिसंबर में। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको अभी कमिंग मंथ्स में देखने को मिलने वाली है, राइट। क्लरिकल की कितनी एग्जाम्स बोली मैंने, 5 एग्जाम्स, प्रोबेशनरी ऑफिसर की 5 एग्जाम्स। अभी मैं इंश्योरेंस सेक्टर की मैं अलग से काउंट भी नहीं कर रहा हूँ, इंश्योरेंस सेक्टर में भी एलआईसी का अलग से एग्जाम, जीआईसी का अलग से एग्जाम, एनआईसीएल का अलग से एग्जाम, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स है। एग्जाम्स की कमी बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ प्रिपेयर्ड रहना है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उसको ग्रैब करना है, राइट। ये तो हो गया सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। अभी बात करते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कैसे रिक्रूटमेंट करती है। देखो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इनका मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप होता है। मैं कुछ एग्जांपल अगर आपको दूं, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, पीएनबी, बीओबी, आईडीबीआई, आईओबी, कैनरा बैंक, इन ये जो बैंक्स है, ये कैनरा प्राइवेट नहीं है बट ये जो आईसीआईसीआई, एक्सिस, पीएनबी ये दिख रहा है आपको, बीओ, एचडीएफसी भी कभी कभी कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करके एग्जाम्स लेता है। एंड कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आपको यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में डाली है, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, आईओबी, कैनरा बैंक। देखो ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ये अपना आईबीपीएस के थ्रू भी रिक्रूटमेंट करता है, प्लस मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ भी इन्होंने टाई अप किया हुआ होता है और इनका अलग से भी एग्जाम होता है। देखो और एक अपॉर्चुनिटी आ ही गई आपके सामने, राइट। नाउ ये एग्जैक्टली exactly होता क्या है, ये कोर्स होता है गाइस। देखो मैंने डिटेल्स आपके लिए यहाँ पे दिया है। दिस कोर्स कंसिस्ट ऑफ 8 to 12 months ऑन कैंपस प्रोग्राम, ओके।
And on successful completion of the course, the candidate would be awarded a postgraduate certificate in banking and finance and will be offered appointment in the bank as a probationary officer. मतलब पहले तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। ये अगर आप टेस्ट देते हो, क्लियर कर लेते हो, तो आपको एक कोर्स वो ऑफर करेंगे। वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस का, एंड उसके साथ साथ आपको एक रेडीमेड जॉब एज अ पीओ उसी बैंक में दिया जाता है ना। बढ़िया बात, आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, मतलब आपके सीवी में भी एक एडिशन हो गया, आपको पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल गया बैंकिंग एंड फाइनेंस में, एंड जॉब भी मिल गया, राइट। सो प्राइवेट बैंक्स एंड कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके ये एग्जाम्स कंडक्ट करती है ना। मैंने कब से बोला आपको, इतनी सारी एग्जाम, पीओ का एग्जाम, क्लर्क का एग्जाम, प्राइवेट सेक्टर। एक खास बात ये है गाइस, एग्जाम्स बहुत सारी है, बट सिलेबस फॉर ऑल द एग्जाम इज ऑलमोस्ट से वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वही लॉजिकल रीजनिंग, वही जीके, वही इंग्लिश, राइट। स्लाइटली थोड़ा थोड़ा, मतलब अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस सेक्टर का जीके और बैंकिंग सेक्टर का जीके, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट अगर मैं क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश की बात करूं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो चैप्टर्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बैंकिंग के लिए होते हैं, वही चैप्टर्स इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी होता है। तो आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। एक बार प्रिपेयर करो, एक बार कोर्स कंप्लीट करो, देन यू आर रेडी टू गिव ऑल द एग्जाम्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग, प्राइवेट, आरआरबीज एंड सो मेनी, राइट। और उससे भी बढ़िया बात ये है कि आप सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को ही टारगेट नहीं कर सकते ये कोर्स कंप्लीट करके। आप देखो, ये सिलेबस ऑफ बैंक एग्जाम्स आपको कहाँ कहाँ काम में आता है, आपको मैं ये बताता हूँ। सबसे पहले आप बैंक पीओ क्लर्क और इंश्योरेंस असिस्टेंट एंड ऑफिसर का हमने तो बात कर ही लिया। इसके साथ साथ यही सिलेबस आपको एसएससी में भी देखने को मिल जाता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपने सुना है, राइट। एसएससी में भी ऑलमोस्ट ये सिलेबस है। इसमें सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं एसएससी में, जैसे जनरल साइंस एंड ऑल, वो आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है। बट आपका एप्टीट्यूड पार्ट जो है वो आपको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज बैंक एग्जाम्स के प्रिपरेशन में वो ऑलरेडी आपका हो चुका होगा। तो आपका ये प्रिपरेशन वेस्ट नहीं जाएगा, आपका वो एसएससी में भी काम में आएगा। इसके साथ साथ अगर आप में से बहुत सारे लोग बैंकिंग के साथ साथ एमपीएससी यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करते हो, राइट, तो उसमें सी सैट होता है, आपको पता है, जैसे क्वांट रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड सो ऑन, ये सारे चैप्टर्स बैंक एग्जाम्स में डिटेल में लिए जाते हैं, राइट। तो आपका सी सैट का भी प्रिपरेशन इसमें हो जाता है। इसके साथ साथ आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो होता है, उसकी जो एग्जाम्स होता है, उसमें भी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश होता है, उसका भी प्रिपरेशन आपका बैंक एग्जाम्स के साथ हो ही जाएगा। एंड गाइस, अब आपने भी कोई एक ऐसी प्राइवेट कंपनी नहीं देखी होगी जो बिना एप्टीट्यूड टेस्ट के रिक्रूटमेंट करती हो। एटलीस्ट जहां तक मुझे पता है, जो भी कंपनीज रिक्रूटमेंट करती है, मैं प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूँ, बैंकिंग का छोड़ दो, कोई भी सेक्टर का प्राइवेट कंपनी लो, वो सबसे पहले आपके ग्रेजुएशन मार्क्स वगैरह वो सब बाद में देखा जाता है। सबसे पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, और उस एप्टीट्यूड टेस्ट में भी क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश ही होता है, राइट। सो अगर आप ये कोर्स कंप्लीट किए हो, तो अगेन आपको वो मौका भी मिल जाता है। गाइस, आप एप्टीट्यूड्स जो है, क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश है, इसके इतने सारे यूजेस हैं, वो आप, ये तो मैंने सिर्फ मेजर 6 सेक्टर्स आपके सामने रखे। इसके अलावा भी आप अगर देखते हो, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज जहां पे आपको ये एप्टीट्यूड पार्ट जो है वो काम में आएगा, राइट। बिना एप्टीट्यूड के आपको कोई जॉब मिलने नहीं वाला है। एप्टीट्यूड आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, मतलब क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास या डिस्टिंक्शन लाया होता है, बट कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक में जब वो इंटरव्यू या एग्जाम के लिए जाते हैं, रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं, तो एप्टीट्यूड में फेल हो जाते हैं। तो देखो, आपने ये 4 इयर्स 5 इयर्स जो भी 2 इयर्स जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में मेहनत की होती है, वो सब वेस्ट जाता है अगर आप एप्टीट्यूड में फेल हो जाते हो। सो आपको क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश, इसको बहुत सीरियसली लेना है, जो कि हम बैंक एग्जाम में बहुत थोरली आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अभी ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, राइट। पीओ की, मैं सिर्फ पीओ क्लर्क का आपको बताता हूं, इंश्योरेंस सेक्टर का भी ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट। आरआरबी का भी ऑलमोस्ट सेम होता है। आपको ऑलमोस्ट आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है।
तो इसलिए मैंने दो कैटेगरीज आपके लिए सिलेक्ट की है। मैं पीओ का एंड क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो पीओ में अगर मैं प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करूं, फेज 1 जो होता है वो, उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने लिया है इंग्लिश। 30 क्वेश्चंस होते हैं 20 मिनट्स। इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, आपका ग्रामर, राइट, आरसी दैट इज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज, जो भी है आपको डिटेल में हम क्लासरूम्स में आपको एक एक चैप्टर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको 30 क्वेश्चंस होते हैं और 20 मिनट्स होते हैं सिर्फ। Guys, अब जो भी बैंक एग्जाम्स आ रही है उसमें एक सेक्शनल टाइम लिमिट करके एक कंसेप्ट आया है, मतलब आपको पर्टिकुलर सेक्शन पर्टिकुलर टाइम में ही कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि अभी ये इंग्लिश सेक्शन है, 30 क्वेश्चंस का आपके सामने होंगे, आपको 20 मिनट्स दिया जाएगा। उस 20 मिनट्स में आप किसी दूसरे सेक्शन में जा नहीं सकते, आपको इंग्लिश सेक्शन ही कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप वो 20 मिनट्स होने के बाद ही आप नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकते हो, ठीक है। तो वन सेक्शन का टाइम दूसरे सेक्शन में यूटिलाइज करना अलाउड नहीं होता, ठीक है। अगर मैं दूसरे सेक्शन की बात करूं जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये एक मैथमेटिक्स है गाइस। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक का मैथमेटिक्स होता है। इसमें डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं जैसे कि सिंपल इक्वेशन, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर्स, इंडाइसेस, सोर्स एंड सो ऑन। इसका हर एक चैप्टर का अलग से हम लेक्चर लेते हैं, अलग से उसके ऊपर सेक्शनल टेस्ट, बहुत सारा उसको थोरली हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। 20 मिनट्स दिए जाते हैं, 35 क्वेश्चंस। जस्ट इमेजिन गाइस, 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस, वो भी मैथ्स के। ये तभी हो पाएगा जब आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, राइट। कोई बोलेगा क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स है तो आराम से हो जाएगा। यस, आराम से हो जाएगा, बट आप ये टाइम लिमिट देखो, 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में करने हैं, आपको 1 मिनट भी नहीं है वन क्वेश्चन करने के लिए, राइट। वो ये काम वही कर सकता है जिसने अच्छे से कंसेप्ट को सीखा है, शॉर्टकट सीखे हैं, वही ये काम कर सकता है। एंड नेक्स्ट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है रीजनिंग एबिलिटी। इसमें भी पजल्स कर ज्यादा फोकस किए जाते हैं, लीनियर पजल्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन, राइट। ब्लड रिलेशन जैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी होते हैं यहाँ पे, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम्स होता है, राइट, डिडक्शंस होता है। ये सारे चैप्टर्स मिलके आपको 35 क्वेश्चंस आते हैं और वो भी 20 मिनट्स। अगेन देखो टाइम एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस, बड़े बड़े पजल्स होते हैं। तो अगेन ये भी आपको क्लासरूम में बताया जाता है कि पजल्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे ब्लड रिलेशन के डायग्राम्स बनाने हैं, ये आपको डिटेल में हम क्लासरूम्स में बताते हैं। ये हो गया पीओ का प्री का पैटर्न, राइट। टोटल कितना टाइम दिख रहा है आपको, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन, ओके। अभी ये पीओ का एग्जैक्ट पैटर्न क्लरिकल में भी फॉलो होता है, देखो मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्लर्क में भी इंग्लिश 30, वही नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड वही टाइम लिमिट सेम है। डिफरेंस कहाँ होता है, डिफरेंस होता है डिफिकल्टी लेवल। पीओ एक ऑफिसर लेवल का एग्जाम है, क्लरिकल ये एक असिस्टेंट लेवल का एग्जाम है। सिलेबस तो सेम है बट डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा सा डिफर करता है। पीओ में स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लरिकल में इजी इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। आपका टारगेट जो है वो ऑफिसर का ही होना चाहिए, राइट। ऑफिसर का, क्योंकि खास बात क्या है, प्रिपरेशन तो सेम है ना। पीओ में नहीं हुआ तो ठीक है, क्लर्क में ज्वाइन कर लेंगे, क्लर्क भी कभी ना कभी ऑफिसर बन जाता है 2 2 2.5 साल में। बट क्यों ना हम पीओ के लिए ही टारगेट करें, उतना ही आप जल्दी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। बट खास बात यह है पीओ एंड क्लरिकल का सिलेबस जो है वो एग्जैक्टली सेम है। फर्क सिर्फ इतना होता है, पीओ में डिफिकल्ट क्वेश्चंस, क्लरिकल में इजी क्वेश्चंस, राइट। नाउ ट्री में एक छोटा सा डिफरेंस अगर आपको दिख रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जगह पे वहां पे न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा है। न्यूमेरिकल एबिलिटी इसलिए लिखा है क्योंकि क्लरिकल में जैसे मैंने बोला इजी होता है, इसमें बॉडमास रिलेटेड क्वेश्चंस जो है प्योर नंबर बेसिस के ऊपर के जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा आते हैं, राइट। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है वो कम आते हैं। बट अगेन ऐसा नहीं है कि क्लरिकल में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे टाइम एंड डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क के ऊपर, ऐसा नहीं है। सिर्फ वर्ड मास सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन क्लरिकल में ज्यादा आते हैं, इसलिए वहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं लिखा है, वहां पे न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा है। इज दैट क्लियर? तो प्री का आपको पैटर्न समझ में आ गया, पीओ एंड क्लर्क का। अभी बात करते हैं फेज 2 की, जिसको हम मेंस एग्जाम बोलते हैं, राइट। मेन एग्जामिनेशन, अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है तो आपको मेन एग्जाम देने का मौका मिलेगा, राइट।
मेन एग्जाम का सिलेबस जो है वो पहले मैं पीओ का बात करता हूँ। पीओ में रीजनिंग एंड कंप्यूटर, देखो रीजनिंग के साथ यहाँ पे कंप्यूटर मिक्स होता है। 45 क्वेश्चन 60 मिनट्स, ठीक है। जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 35 मिनट्स। इंग्लिश 35 क्वेश्चन 40 मिनट्स। डाटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको डीआईएम बोलते हैं, 35 क्वेश्चन 45 मिनट्स। एंड टोटल देखा जाए तो 155 क्वेश्चंस होते हैं 180 मिनट्स। एग्जैक्टली यहाँ भी आपको सेक्शनल टाइम लिमिट दिया जाता है, ठीक है। अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हो तो आप फेज 3 में जाओगे, बट उससे पहले मैं आपको फेज 2 मेन एग्जामिनेशन जो है वो क्लरिकल का भी बता देता हूँ, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा। और एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है पीओ में गाइस, एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। जैसे ही आपके ये 155 क्वेश्चंस एंड 180 मिनट्स फिनिश हो जाते हैं तो आपको एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना पड़ता है उसी स्क्रीन के ऊपर, वो भी ऑनलाइन ही होता है। आपको एक लेटर एंड एक एसे, इसका भी ट्रेनिंग आपको हम देते हैं। लेटर कैसे लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको डालने हैं जिससे आपका स्कोर बढ़े, ऐसे कैसे लिखना है, कैसे फॉर्मेट होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको क्लासरूम में या ऑनलाइन लेक्चर्स में बताई जाती है, राइट। ये 2 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 1 लेटर एंड 1 ऐसे, और उसके लिए 30 मिनट्स। तो ये हो गया पीओ का मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न। उसके बाद अगर बात करें तो वो है मेन एग्जामिनेशन क्लर्क का। इसमें भी रीजनिंग एंड कंप्यूटर है, जनरल एंड बैंकिंग है, इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और आपको टोटल 190 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं 160 मिनट्स में, राइट। पैटर्न तो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब वही सब्जेक्ट लिए गए हैं, बाकी थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको डिफरेंट लग रहे हैं एज कंपेयर टू पीओ, बट ये क्वेश्चंस इजी होंगे, डोंट फॉरगेट दिस। वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा है। एक खास बात ये है क्लरिकल में, देयर इज नो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट प्लस देयर इज नो इंटरव्यू, राइट। क्लरिकल एग्जाम में कोई इंटरव्यू नहीं होता। अगर आप ये मेन एग्जामिनेशन क्लियर कर दो तो बस आपके लिए ऑफर लेटर रेडी होगा, ठीक है। बट पीओ की अगर मैं बात करता हूँ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसमें आपको ये फेज 3 दिखने को मिलेगा। फेज 3 में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, एंड इंटरव्यू के साथ साथ आपको जीडी देना पड़ेगा। जीडी जो है, जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, वो सिर्फ एसबीआई पीओ के लिए ही एप्लीकेबल है। बाकी आईबीपीएस पीओ की एग्जाम्स में जीडी नहीं लिया जाता। सिर्फ एसबीआई जो उसका अलग से एसबीआई पीओ का एग्जाम कंडक्ट करती है, उसके लिए हम ये कंडक्ट जीडी लिया जाता है, ओके। सो इंटरव्यू देने के बाद आपका फेज 3 कंप्लीट हो जाता है, दैट्स इट, आपको जॉब मिल जाएगा। अगर आप ये तीनों फेजेस क्लियर करते हो, आपका पीओ का पोस्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। ये पैटर्न के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मुझे आपको बताने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स ऑब्टेन इन प्रीलिम विल नॉट बी कंसिडर फॉर मेकिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। आप प्री में चाहे कितने भी 100 में से 90 लाओ, नो यूज। आपको सिर्फ वो लेके जाएगा मेन एग्जाम्स तक। आपका एक्चुअल मेरिट लिस्ट जो है वो मेन एग्जाम का स्कोर देख के लगाया जाता है। द टाइम बिटवीन प्रीलिम एंड मेंस इज ओनली 15 to 25 days। तो ऐसा नहीं कि मैं प्री क्लियर करने के बाद मेंस के लिए प्रिपेयर करूंगा, ऐसा नहीं करना है गाइस। आपका प्रिपरेशन जो है मेंस शुड बी डन अलोंग विद द प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम। ये साथ साथ आपको प्रिपेयर करना है। सिलेबस भी अगेन गाइस, प्री का सिलेबस मेंस का सिलेबस डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। अगेन इसमें भी डिफिकल्टी लेवल मैटर करती है। प्री थोड़ा इजी होता है, मेंस थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जो भी हम क्लासरूम्स में आपको बताते हैं वो लेवल बाय लेवल करते हैं। मैं आगे आपको हमारे कोर्स स्ट्रक्चर में जब जाएंगे तब आपको बताऊंगा कि हम प्री के लिए कितने लेक्चर्स लेते हैं, मेंस के लिए कितने लेक्चर्स लेते हैं। बट ऐसा नहीं करते हम कि प्री होने के बाद फिर देखा जाएगा मेंस का, ऐसा नहीं है। हम पूरा प्रिपरेशन प्री एंड मेंस का एक साथ ही आपसे करवा लेते हैं, ठीक है। देन सिलेबस ऑफ प्री एंड मेंस इज सेम, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड दोनों एग्जाम्स में 1/4 नेगेटिव है। आप जानते होंगे 1/4 नेगेटिव मतलब क्या। अगर आपका आंसर रॉन्ग आता है तो 0.25 आपका सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। वन अगर आंसर राइट आता है तो आपको 1 मार्क मिलेगा। एंड कुछ क्वेश्चंस जो है वो आजकल 1 मार्क से भी ज्यादा मार्क के लिए आते हैं रीजनिंग में एंड कंप्यूटर में, राइट। वो हम डिटेल में जब कोर्स स्ट्रक्चर में जाएंगे तब मैं आपको बताता हूँ। नो सेक्शनल कट ऑफ इन एसबीआई। एसबीआई ने रिसेंटली सेक्शनल कट ऑफ हटा दिया है। क्यों? देखो, पहली बात तो बहुत लोगों का, हर एक का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, हर एक का वीक पॉइंट होता है। मतलब किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है एंड मैथ्स वीक होता है। किसी का मैथ्स बहुत फैंटास्टिक होता है बट इंग्लिश में वो कंफर्टेबल नहीं होता, राइट। सो फॉर सच स्टूडेंट्स दिस इज वेरी बेनिफिशियल, राइट। आप चाहे जिस सब्जेक्ट में चाहे स्कोर करो, आपको सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग। जिनका जिनको मैथ से डर लगता है या जिसको इंग्लिश से डर लगता है, उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज है, राइट। सेक्शनल कट ऑफ सिर्फ एसबीआई की एग्जाम्स से एलिमिनेट कर दिया गया है, बाकी एग्जाम्स में सेक्शनल कट ऑफ अभी भी है।
इनफैक्ट अभी जो IBPS PO का नोटिफिकेशन निकला है उसमें भी सेक्शनल कट ऑफ है। मैं ये सिर्फ SBI एग्जाम के लिए कट ऑफ नहीं है ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। काम की बात, राइट। आप सब आए हो ये वेबिनार अटेंड करने क्योंकि आपको जानना है कि बैंकिंग को रिसेशन प्रूफ क्यों कहा जा रहा है, राइट। रिसेशन, आप ये वर्ड को बहुत डेली सुन रहे होंगे, रिसेशन चल रहा है या आएगा, राइट। तो गाइस बिल्कुल डरना नहीं है, राइट। रिसेशन में भी बहुत सारी बढ़िया सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही है, राइट। आपको सिर्फ उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। कॉम्पिटिशन बहुत है, जो अच्छे से प्रिपेयर करेगा, जो अच्छे से स्टडी करेगा, हार्ड वर्क करेगा, उसी को ये अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ठीक है। अभी बात करते हैं, मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी है, सर ने ऑलरेडी आपको 1 अगस्त एंड 4 अगस्त में बताया होगा कि मैनेजमेंट सेक्टर में कौन सी अपॉर्चुनिटीज है। आज अगर मैं बात करूं आज के वेबिनार की, कि आज मैं आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूँ जो बैंकिंग सेक्टर में आपका वेट कर रही है। तो बात करते हैं सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज के बाद बात करते हैं कि बैंकिंग सेक्टर को रिसेशन प्रूफ क्यों कहा जा रहा है। रिसेशन तो आ रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जॉब जाएंगे या चले गए, सैलरी कट्स एंड ऑल ये चल रहा है, राइट। बट अगर आपने देखा होगा बैंक्स जो है वो बंद नहीं हुए, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद थी लॉकडाउन में, जॉब कट्स हुआ, बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब कट्स हुआ, सैलरी कट्स हुआ, ये 2-3 मंथ्स में आपने देखा होगा। अभी अभी धीरे धीरे सारी चीजें लाइन पे आ रही है। बट बैंकिंग सेक्टर में क्या आपने कभी सुना कि जॉब कट्स हुए या बैंकिंग एम्प्लॉय बैंकर्स जिसको हम बोलते हैं बैंक एम्प्लॉयज को, उनको सैलरी नहीं मिल रहा है या उनका सैलरी कट हुआ है, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा, बिकॉज वो चल रही है। बैंक को आप बंद नहीं कर सकते गाइस, बिकॉज इट इज अ लाइफ ब्लड ऑफ द इकोनॉमी। बैंक्स को ही बंद कर दोगे तो पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगा, राइट। सो बैंक्स बंद नहीं होगी, और बैंक्स अगर बंद नहीं होगी तो आपका जॉब सिक्योर रहेगा। अगर आप बैंक में जॉब करते हो तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस रिसेशन एंड कोविड। आपको कोई, यस केयरफुल तो रहना है, बट आपका जॉब जो है वो सिक्योर रहेगा, इतना मैं आपको बता सकता हूँ, राइट। आपने कभी सुना कि आरबीआई में जॉब कट्स हुए, आरबीआई अभी इतने एम्प्लॉयज को निकालेगा? नेवर, यू विल नेवर लिसन सच, राइट। योर जॉब विल बी सिक्योर, ठीक है। जॉब सिक्योर्ड है एंड उसके साथ साथ आपको रिस्पेक्ट भी मिलता है, तो और क्या चाहिए। जॉब भी सिक्योर्ड है, देखो आप देखते हो आपके आजू बाजू में, राइट, कि दिस पर्सन इज अ ऑफिसर इन अ बैंक, तो उसका एक अलग से ऑरा होता है, राइट। एक अलग से उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है कि वाओ दिस पर्सन इज मार्केटिंग ऑफिसर इन SBI, दिस पर्सन इज प्रोफेशनली ऑफिसर इन SBI, मैनेजर इन SBI, ब्रांच मैनेजर इन HDFC, राइट। एक अलग तरीके से इनका एक स्टेटस आपको मिल जाता है, तो रिस्पेक्ट बहुत मिलता है सोसाइटी में बैंकर्स को, ठीक है। देन मैंने अभी बोला स्ट्रॉन्गेस्ट रिक्रूटिंग इंडस्ट्री इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसेशन, राइट। अभी भी पोस्ट निकल रही है, जस्ट इमेजिन PO ने अभी भी नोटिफिकेशन निकाल दिया, इतना सब कुछ चल रहा है, बाकी पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है आपको अच्छे से पता है। अब फिर भी IBPS की तरफ से PO का नोटिफिकेशन आ गया है। ये तो पहली बात है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपको भले ही वहां पे वैकेंसीज कम दिख रही है, बहुत सारी बैंक्स अभी अपडेट्स करेंगी वैकेंसीज, बहुत सारी पोस्ट आ रही है आपके लिए, क्लरिकल, RRB, प्राइवेट की भी अलग से एग्जाम्स होने वाली है। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है और ये सब कुछ चल रहा है ये रिसेशन पीरियड में। इनफैक्ट आपने इस हिस्ट्री में अगर आप देखते हो, जितनी भी बार रिसेशन आया, उन सभी वक्त पे बैंकिंग इंडस्ट्री को इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। खास करके मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में लोगों के जॉब्स के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। उनको ज्यादा सफर नहीं हुआ है रिसेशन की वजह से, राइट। तो और एक बात कर दूं जॉब सिक्योरिटी के बारे में, मैं तो बता दिया आपको। जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ आपको मिलता है जॉब सेटिस्फैक्शन। आप वर्ड में तो दिखता है जॉब सेटिस्फैक्शन मतलब क्या, जैसे कि सिक्योर्ड जॉब है बट आपको बहुत सारा काम करवा रहा है कोई और उसके बदले में सिर्फ 10,000 रुपए दे रहा है, बहुत सारा, आपको दिन सुबह से लेके रात तक काम ही काम करना है, बहुत सिक्योर्ड जॉब है, जॉब कभी जाएगा नहीं, रिसेशन आए या कुछ भी आए, जॉब सिक्योर्ड है, आपको उसकी चिंता नहीं है। बट आपको इतना काम करने के बाद बहुत छोटी सी सैलरी जब मिलती है तो आप सेटिस्फाइड नहीं रहते, राइट। जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ जॉब सेटिस्फैक्शन भी जरूरी होता है। जितना काम करो उतना पैसा जब आपको मिलता है, उतनी सैलरी जब आपको मिलती है, देन दैट जॉब इज बेस्ट जॉब फॉर यू। तो बैंकिंग जॉब में आपको जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। मैं सारे पोस्ट की सैलरीज आपके सामने नहीं रखता, बट मैं सिर्फ SBI PO की सैलरी आपके सामने रख देता हूँ। 13.08 lakhs per annum फॉर अ फ्रेशर,
जस्ट इमेजिन, ये आपका स्टार्ट का सैलरी होगा गाइस, 13.08 lakhs, मोर देन 1 लाख रुपीज पर मंथ, राइट? बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी एजुकेशनल बैकग्राउंड का रिस्ट्रिक्शन, कोई नहीं, आपको, आप एक एग्जाम क्लियर करो पीओ का, दैट्स इट, ये जॉब आपका हो जाएगा, राइट? सो इतना, अगर आप चाहते हो कि आपका करियर स्टार्ट ही इतने बड़े पैकेज से हो, तो आपको आज से ही उसके लिए प्रिपरेशन जो है वो शुरू करना है, ठीक है? देन नो, मैंने अभी बात की ना कि कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड का रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप चाहे आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, कुछ भी, आप कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका, इंजीनियरिंग हो, बीएससी हो, एग्रीकल्चर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड का स्टूडेंट ये एग्जाम्स दे सकता है। एंड सबसे बड़ी बात, मार्क्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि 60% ही चाहिए, सेमेस्टर में इतने ही मार्क्स चाहिए, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्ट पहले था, अभी वो भी धीरे धीरे कम हो गया है। तो मार्क्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं, एजुकेशन बैकग्राउंड का रिस्ट्रिक्शन नहीं, ऊपर से एक्सपीरियंस का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा भी नहीं कुछ। फ्रेशर, आप सीधा, आप ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम दे रहे हो, या ग्रेजुएशन के बाद 2 साल घर पे थे, 3 साल घर पे थे, फिर एग्जाम दो, nobody is going to ask you anything, आप फिर भी एग्जाम दे सकते हो, और फिर भी आपका ये जॉब आपके हाथ में आ सकता है, राइट? तो कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई भी मार्क्स रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और कोई भी बैकग्राउंड का भी, एजुकेशनल बैकग्राउंड का भी रिस्ट्रिक्शन है ना, खास बात। देन और कुछ प्लस पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं बैंकिंग करियर, स्कोप फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ। गाइस, जैसे मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि आप क्लरिकल पे ही ज्वाइन करते हो, तो क्या जिंदगी भर क्लरिकल लेवल पे रहोगे? नॉट एट ऑल। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं हमारे, जो क्लरिकल ज्वाइन करने के बाद विद इन 1.5 year पीओ बन गए, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनल एग्जाम्स। अगर आप क्लरिकल लेवल पे ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, इंटरनल एग्जाम्स दे सकते हो आप उस बैंक में, या एक्सटर्नल एग्जाम्स भी, ये जो एक्सटर्नल पीओ की एग्जाम्स निकलती है वो भी दे सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको 2-2.5 साल क्लरिकल पे ही रहना पड़ेगा, आप बहुत सारी एग्जाम्स दे सकते हो, और जल्दी से जल्दी आप ऑफिसर बन सकते हो। देन एवरी पॉसिबिलिटी टू रीच द टॉप लेवल। देखो, ये एंट्री लेवल हो गई, क्लरिकल या पीओ, ये एंट्री लेवल है, मतलब ये पोस्ट का यूज करके आप एंट्री करते हो उस बैंक में, राइट? मैंने ये नाम लिखे हैं, आप शायद जानते होंगे इनके, इनको, रजनीश कुमार, अरुंधति भट्टाचार्य, सुना है आपने? यस, सुना ही होगा, क्योंकि हमारे इंडिया की सबसे बड़ी बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके सीईओ का नाम है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर भी बोलते हैं इसको कुछ लोग, राइट? अरुंधति भट्टाचार्य, फर्स्ट फीमेल सीएमडी ऑफ एसबीआई, पहली फीमेल सीएमडी थी ये अरुंधति भट्टाचार्य, राइट? अरुंधति भट्टाचार्य ने भी, इन्होंने एज अ पीओ ज्वाइन किया था एसबीआई, एंड वो मतलब एंट्री लेवल से टॉप लेवल तक चली गई। रजनीश कुमार जो अभी करंट सीएमडी है, राइट, वो भी एज अ पीओ ही ज्वाइन हुए हैं एसबीआई में, और वो एसबीआई के हेड है अभी, जस्ट इमेजिन। तो आपको अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं मिलेगी विद इन द बैंक ऑल्सो। आपका जो जर्नी होगा एंट्री टू टॉप का, वो बहुत शॉर्ट है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, ठीक है? देन यूसेज ऑफ बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी। गाइस, बैंक्स में लोगों का पैसा होता है, लोगों की मेहनत का पैसा होता है, तो वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी इंस्ट्रूमेंट, सॉफ्टवेयर जो भी है, वो सब बेस्ट इन द मार्केट जो होते हैं वही यूज किए जाते हैं, बिकॉज नो बैंक वांट टू कॉम्प्रोमाइज पीपल्स मनी, राइट? लोगों का पैसा ही अगर सिक्योर नहीं रख सकते, तो लोग कैसे क्या बैंक में पैसा रखेंगे? तो आपको जो स्ट्रेस है, मतलब आप देखो, ये टेक्नोलॉजी की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी का यूज करके आपका जो ह्यूमन वर्क है वो कम हो जाता है, आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आपका काम आसानी से कर देते हैं। तो जो भी बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, बड़े बड़े फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर होते हैं, वो इन बैंक्स में यूज किए जाते हैं, सो दैट एज अ एम्प्लॉय दिस इज वेरी गुड थिंग फॉर यू, ठीक है? देन अगर बात करता हूँ चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर लर्निंग। देखो, बैंक में बहुत लोगों को लगता है बैंक इज वेरी बोरिंग जॉब, बिल्कुल नहीं। मैं खुद बैंक में जॉब कर चुका हूँ, और बैंकिंग में डेली आपको नए नए चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। मैं अपॉर्चुनिटीज क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जब आप कोई भी बैंक में काम करते हो, कस्टमर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, और इसको एज अ अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो हायर लर्निंग, राइट? डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस जो है वो आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ा देते हैं। एंड इसके साथ साथ, अगर मैं
बात करूं, कुछ लोगों का एम्बिशन होता है कि मुझे इंडिया में जॉब नहीं करना, या फिर बहुत लोगों का एक ख्वाब होता है, राइट, है ना, ड्रीम होता है ना आपका कि यार कभी ना कभी तो फॉरेन में जॉब करना ही है, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि बस अभी इंडिया में ही रहेंगे, हम इंडिया के बाहर नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये बैंक फॉरेन में भी है। जैसे मैं अभी दो ही एग्जांपल देता हूँ, पूरी लिस्ट नहीं बताता आपको फॉरेन ब्रांचेस की। एसबीआई जो सबसे बड़ी बैंक है इंडिया की, 36 कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है एंड 190 ब्रांचेस है इसकी। जस्ट इमेजिन। बैंक ऑफ बड़ौदा 24 कंट्रीज में है एंड उसकी 107 ब्रांचेस है। तो आपको तो फॉरेन में जाने का मौका भी यहाँ से मिल सकता है। देन this is the golden opportunity to invest in your career to get fantastic return for rest of your life. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज अगर ये 3 to 4 months आप अच्छे से इन्वेस्ट करते हो आपकी करियर में, पहले तो एक अच्छा कोर्स ज्वाइन करते हो और उसके ऊपर खुद भी अपना प्लान बनाते हो, डेली 6 to 8 hours पढ़ते हो, तो ये जो हार्डवर्क आप करोगे 3 to 4 months, इसका आउटपुट आपको पूरे जिंदगी भर मिलेगा, राइट? बिकॉज कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो इतना बड़ा जॉब मिलने के बाद उसको छोड़ दे, राइट? एक बार इस बैंकिंग सेक्टर में आपका एंट्री हो गया, रिटायरमेंट तक आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अभी मुझे थोड़ा सैलरी हाइक के लिए जॉब शिफ्ट करना पड़ेगा, या फिर अभी मतलब अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के सर्च में रहता है ना। बाकी प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा है तो हर 2-3 साल के बाद खुद की इंप्रूवमेंट के लिए आदमी जॉब चेंज करता है कि सैलरी हाइक मिलेगा या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बट यहाँ पे आपको वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक बार आप ज्वाइन करते हो तो रिटायरमेंट तक आपको बैंक छोड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। क्लियर? ओके। ना, चलो अभी थोड़ा सा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट हमने बात कर लिया, अभी थोड़ा सा नंबर्स के साथ खेलते हैं, राइट? गाइस, शॉर्टकट ये जो वर्ड है, ये इसको बहुत मिसयूज किया जाता है, या इसका बहुत गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। शॉर्टकट्स लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नेट पे या मतलब बहुत जगह पे आपको दिखेंगे कि 1 to 20 के मल्टीप्लिकेशन करने के लिए शॉर्टकट, 30 to 50 के नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन करने के लिए शॉर्टकट, 60 to 100 के मल्टीप्लिकेशन के लिए शॉर्टकट। कितने सारे शॉर्टकट्स याद रखोगे आप, राइट? ये शॉर्टकट्स के पीछे बिल्कुल नहीं पड़ना। शॉर्टकट्स बहुत लिमिटेड आपको पढ़ने हैं, बिकॉज हमने देखा है जो स्टूडेंट बहुत शॉर्टकट्स की खिचड़ी लेके जाता है दिमाग के अंदर, उसको फिर एग्जाम में पता नहीं चलता कि इधर क्या यूज करूँ, वो मेथड यूज करूँ या इधर वो यूज करूँ। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। टाइम में हम आपको लिमिटेड शॉर्टकट सिखाते हैं, बट वो शॉर्टकट्स का जो क्वालिटी है या रेंज जो है, रेंज मतलब क्या, कोई भी हर एक शॉर्टकट का एक लिमिटेशन होता है कि पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस जो है वो कवर करता है। तो हम ज्यादा करके ऐसे शॉर्टकट्स आपको बताते हैं वो ज्यादा से ज्यादा रेंज, ज्यादा से ज्यादा कैटेगरीज के क्वेश्चंस जो है वो कवर कर पाए। ऐसा नहीं कि 4-5 क्वेश्चंस के लिए अलग सा शॉर्टकट, वो 4-5 के लिए अलग सा शॉर्टकट। जैसे बात करता हूं मैं अभी स्क्वायर रूट ऑफ 7396। पहली बात तो, अगर आपको कोई शॉर्टकट नहीं पता है स्क्वायर रूट का, आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। कर भी सकते हो तो बहुत ज्यादा टाइम। मान लो मल्टीप्लीकेशन अगर मैं आपके सामने दे देता, अगर मैंने आपको बोला कि 23 या 235 इंटू 507 करो, राइट? अब इसका शॉर्टकट आता है, वो हम क्लासरूम्स में आपको बताते हैं 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। ये शॉर्टकट किसी को पता भी नहीं है तो भी वो कोई भी स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन कर देगा। हाँ, 10 सेकेंड ज्यादा लेगा, बट करके तो दिखाएगा ना। मल्टीप्लीकेशन सबको आता है। तो स्क्वायर रूट में वैसी चीज कोई नहीं देखी होगी आपने, राइट? स्क्वायर रूट में शॉर्टकट नहीं पता है तो बस सोचते ही रहो, ट्रायल एंड एरर इतना ज्यादा करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये बहुत छोटा नंबर है आपके सामने 7396। अगर ये 5 डिजिट या 6 डिजिट है और उसका अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको शॉर्टकट की जरूरत है ही है, राइट? विदाउट शॉर्टकट आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा एंड इट विल टेक more than 10 to 15 minutes to find the square root of bigger numbers, 5 digit or 6 digit numbers, right? सो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। एंड अगेन मैंने बोला है, हम मोस्टली ऐसे शॉर्टकट्स प्रेफर करते हैं जो ज्यादा कैटेगरीज ऑफ नंबर्स को कवर करे, क्योंकि मैं अभी जो मेथड बताऊंगा वो सारे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। आई एम नॉट लिमिटिंग, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये शॉर्टकट सिर्फ इन्हीं नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, नहीं।
दुनिया का कोई भी नंबर लेके आओ, उसका स्क्वायर रूट ये मेथड निकाल के देगा। इज दैट क्लियर? चलो, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, आपको स्क्वायर रूट तो मिलेगा ही मिलेगा। पहले मैं परफेक्ट स्क्वायर, फिलहाल मैं आज परफेक्ट स्क्वायर की बात करता हूँ, बट मैं कुछ एग्जांपल्स के बाद ये भी बता के ही जाऊंगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करें। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ये नंबर की 7396, ओके, 7396 गाइस, ये नंबर मैं इधर लिख लेता हूँ। आपको एक तरीके का ये डिवीजन ही है, आपको केयरफुली एवरी स्टेप ठीक से देखना है। ठीक है, 7, थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ डिजिट्स ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। 7396। नाउ इस नंबर का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, आई डोंट नो, पता चल जाएगा लास्ट में कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा या सबसे पहला स्टेप जो है वो आपका ये है कि आपको इस नंबर के राइट साइड से 2 डिजिट्स के ग्रुप बनाने हैं। आई रिपीट, राइट साइड से 2 डिजिट्स के ग्रुप्स। राइट साइड कौन सा है ना, राइट साइड गाइज आपका राइट साइड 6 इज दी, जो राइट मोस्ट साइड में मुझे दिख रहा है 6 है, राइट साइड के 2 डिजिट। देखो, ये बन गया हमारा फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, जस्ट ये बन गया हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये बन गया हमारा सेकंड ग्रुप। और कोई होता तो मैं उसको भी ले लेता, राइट? मैंने राइट साइड से 2 डिजिट्स के ग्रुप बनाए। इज दैट क्लियर? चलो, अभी सॉल्व करते वक्त तो हम ऐसे ही जाते हैं, हम मैथमेटिक्स बचपन से ऐसे ही सीखे ना, ऐसे ही डिवाइड करते हैं ना, ये साइड से डिवाइड कर, ग्रुपिंग आपको राइट साइड से करना है। मतलब जस्ट इमेजिन ये नंबर अगर 1739 ऐसे होता, ठीक है, तो ग्रुपिंग कैसी होती गाइस, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये 1 के लिए मैं 0 अटैच कर दूंगा। ग्रुपिंग मेरी राइट साइड से ही होनी चाहिए। और सॉल्व करते हुए फिर मैं ऐसे करना, फर्स्ट ग्रुप में आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, बट ग्रुपिंग आप ठीक से समझ लो। ग्रुपिंग समझ में आ गई, राइट साइड से 2 डिजिट्स के ग्रुप। ठीक है, ओके ओके, बट ये लिखना पड़ेगा हमको 7396, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप, ये मेरा सेकेंड ग्रुप। चलो, अभी बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप की। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट ग्रुप है जो कि है 73 के नियरेस्ट स्क्वायर मुझे बताना है। इस मेथड का एक रूल है, वो रूल ऐसा है कि जो नंबर आप यहाँ पे लिखते हो वही नंबर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे 4 लिख यहाँ पे 3 एंड 4 इंटू 3 12 यहाँ पे लिख दिया, ऐसा नहीं चलता इसमें। ये जो शॉर्टकट है इसका एक रूल है, जो नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा वही नंबर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अगर मैं बात करता हूँ 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25। मैं स्क्वायर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं 5 इधर लिखूंगा और इधर भी 5 लिखूंगा, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, राइट? क्योंकि कम पड़ जाएगा हमारे 73 के लिए, तो क्यों ना 6 लिया जाए। 6 यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी 6, 6 इंटू 6 36, वो भी कम पड़ जाएगा। 7 लिया तो 7 इंटू 7 49, 8 लिया 8 इंटू 8 64, 9 लिया 9 इंटू 9 81, जो कि ज्यादा हो जाता है, डिवीजन में ज्यादा नंबर नहीं चलता, आपको पता है, राइट? तो मैं 9 नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा, 8 लूंगा। देखो, आपको यहाँ पे लेना है 8 और यहाँ भी आ जाएगा 8, 8 इंटू 8 कितना होता है गाइस, 60। ओके, चलो एक सब्सट्रैक्शन कर देना डिवीजन में आप, ठीक है, और यहाँ पे आता है 0। आई होप आपको ये 8 इंटू 8 समझ में आ गया। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं ऐसे और 2 क्वेश्चन लूंगा। मैथ्स में हमेशा याद रखो, पहले हमेशा स्टेप्स को समझा करो, राइट? एक बार आपको स्टेप समझ में आ गई तो देखना, आप एक 5 मिनट्स के बाद दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर दिया जाए ना आपको, आप उसका स्क्वायर रूट ढूंढ लोगे, राइट? सिर्फ पहले ये स्टेप समझ लो। मैं ट्राई वही कर रहा हूँ, जितना ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ उतना मैं डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है? 8 इंटू 8 करने के बाद आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है, वो ये है कि आप जो भी नंबर यहाँ पे लिखोगे ऊपर, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। जो भी लिखा होगा वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। आपने अगर 7 इंटू 7 किया होता ना तो आप यहाँ पे +7 दिखते, अगर आपने 6 इंटू 6 किया होता ना तो आप यहाँ पे 6 देखते। तो 8 एंड 8 होता है 16। क्लियर? 8 एंड 8 होता है 16। सबसे पहले क्या किया, 8 इंटू 8 64 किया, 9 आया है, और जो नंबर ऊपर आया है क्वोशंट के फॉर्म में उसको तुरंत ऐड कर दो हमारे लेफ्ट साइड में।
एग्जैक्टली बस 90% काम हो चुका है आपका। आपका आंसर तो 8 से शुरू होगा, नो डाउट इन दैट। 7396 का स्क्वायर रूट 8 से, ये ऊपर जो है ना वो आपका आंसर रेडी हो रहा है धीरे धीरे। अभी बात करते हैं, इधर का डिवीजन तो खत्म, सब्सट्रैक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट ग्रुप अभी मैं नीचे ला रहा हूँ, नेक्स्ट ग्रुप कौन है हमारा? 96। तो नंबर बन गया 996, ठीक है। सो गाइस अभी अगेन यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंड यहाँ पे सेम डिजिट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया, जस्ट इमेजिन, और यहाँ पे भी क्या होगा फिर 1। 161 इंटू 1, 161 हमारे 996 के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको कट कर देता हूं मैं, ठीक है। 1 लेना ठीक बात नहीं है, तो हम लेंगे कौन सा नंबर? क्या लगता है आपको क्या लेना चाहिए? 3 लू? 163 इंटू 3 वो तो 400 300 के रेंज में जाएगा। नंबर मुझे चाहिए 996। देखो ये 6 आइडिया देगा, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसका मल्टीप्लीकेशन 6 से एंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4, 164 इंटू 4। अगर मैं साइड में आपको 164 इंटू 4 करके बताऊं, तो डोंट यू थिंक वो 996 से बहुत कम रहने वाला है? तो 4 के बाद ऐसा कौन सा डिजिट लेना चाहिए ताकि हमारा जो आंसर है वो किससे एंड हो? 6 से तो एंड हो ही हो, और आंसर भी कितना आ जाए? 996 में। करके बताऊं आपको? 3 9, एक मिनट में थोड़ा सा ये साइड लेके इधर ही करके बता रहा हूँ, ठीक है। 166 इंटू 6 अगर मैं करता हूं, तो 6 इंटू 6 कितना होता है? 36। 3 कैरी, 6 इंटू 6 36 एंड 3 होता है 39। 9 लिख रहा हूँ, 3 कैरी, 6 इंटू 1 6 प्लस 3 9। इधर ये लिख दिया मैंने, वो मल्टीप्लिकेशन जो मैं यहाँ पे करने वाला था मैंने इसको इधर ही कर दिया। इज दैट क्लियर? तो बन गया, बस जीरो आ गया। जैसे ही जीरो आ गया समझ लो आपका स्क्वायर रूट रेडी है। मुझे अच्छी तरीके से पता है गाइस, ये मेथड पहली बार में इतना ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता, राइट। अभी मैं और कुछ नंबर्स लेता हूँ, बट आगे के नंबर्स लेने से पहले मैं एक क्विकली रिवाइज आपको करके बताता हूँ कि इसमें एग्जैक्टली किया क्या है। 50% लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग 50% को मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस में लूंगा उसमें वो जो भी आपके दिमाग में अभी डाउट्स चल रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या लिया, नंबर को राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स के ग्रुप बनाए। उसके बाद 8 इंटू 8 किया 64। 8 इंटू 8 क्यों किया आपको पता है। 73 में से 64 गया तो 9 आया है, प्लस 8 ऐड इसलिए किया क्योंकि रूल है जो नंबर यहाँ होगा वो ऐड करना पड़ेगा, जो कि आया था 16। फिर नेक्स्ट ग्रुप को नीचे लाया जो कि है 96। 96 फिर यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा डिजिट के हम सर्च कर रहे थे जो मुझे 996 देते, तो 166 इंटू 6 अगर मैं करता हूँ तो 996 आता है, और जीरो। रिमाइंडर अगर जीरो आई है तो समझ लेना आपका जो नंबर था 7396 वो एक परफेक्ट स्क्वायर था, और उसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आपने ढूंढ लिया है जो कि है 86। ओके। अगर ये रिमाइंडर जीरो नहीं आता, थोड़ा आता 20 20 30 जो भी है, तो समझ जाते कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और उसका स्क्वायर रूट जो है वो 86 पॉइंट समथिंग होता। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए भी आप डेसिमल पॉइंट तक जा सकते हो, डेसिमल पॉइंट के आगे भी जा सकते हो, बट उतना डिटेल मुझे आज नहीं जाना, मैं सिर्फ डेसिमल पॉइंट तक आपको बताता हूँ। फिलहाल 7396 का स्क्वायर रूट आपके सामने है, मैं नंबर को चेंज कर रहा हूँ। ये 4 डिजिट था ना, मैं अभी 5 डिजिट पे जाता हूँ। देखो 15376, राइट। फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स तो सेम रहेगी, राइट। डोंट वरी, मैं अगेन अगेन ईच एंड एवरी स्टेप डिटेल में बताता हूँ ये नंबर के साथ करके, ठीक है। चलो 1 5 3 7 6, राइट साइड से 2 डिजिट्स के ग्रुप ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाया, अकेला है तो जीरो अटैच किया, राइट। मेथड आगे बढ़ाने से पहले आपको नहीं लगता 15376 का स्क्वायर रूट ढूंढना इज नॉट ए जोक, राइट। आप कैलकुलेटर भी दे दो आपको तो भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा गाइस, बट ये मेथड में अगर आप एक्सपर्ट बन गए तो कैलकुलेटर से भी फास्ट आप ढूंढ लोगे, ठीक है। कैलकुलेटर में अगेन आपको बैंकिंग एग्जाम्स में कैलकुलेटर तो ऐसे ही कैजुअली बोला, बट बैंकिंग एग्जाम्स में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होता। इसलिए आपको आपके कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाना है, और आपको ऐसे बड़े बड़े स्क्वायर रूट निकालने पड़ेंगे बैंकिंग एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चंस में बैंक एग्जाम्स के रिलेटेड ही बता रहा हूँ, आपको कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। ऐसी छोटी छोटे कैलकुलेशन में आप टाइम सेव करोगे तो ही आपके अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे, एंड तब जाके आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है।
तो पहला ग्रुप मुझे दिख रहा है 0 1। 0 1 का अभी नियरेस्ट स्क्वायर, जैसे कि अगर मैं 2 2 लिया यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, जो कि 1 के लिए बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 1 ही लेंगे, 1 इंटू 1, क्योंकि 2 इंटू 2 लिया तो 4, जो कि 0 1 के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो क्या आएगा ये 1 इंटू 1 1। चलो 1, ये सब्सट्रैक्शन होता है यहाँ पे 0। क्या करना है बाद में, क्या बोला था मैंने, जो भी नंबर आप क्वेश्चन में लिखोगे वो आपको ऐड कर देना है, यहाँ पे कर देता हूँ ऐड। ओके, कर दिया ऐड। अभी आता है नेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप कौन है, 53। ओके 53। अभी अगेन सेम, यहाँ पे और यहाँ पे एक ऐसा सेम डिजिट चाहिए जो मुझे 53 दे दे। अभी आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ तो ये 23 इंटू 3 जो कि 69 होता है, ये मेरे 53 के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 23 इंटू 3 नहीं, हम 2 लेते हैं, मतलब 22 इंटू 2। 22 इंटू 2 कितना होता है, 44। क्लियर, रिमाइंडर आ गया हमारा 9। ओके, अभी क्या करना है, क्या बोला है मैंने, क्वोशंट में जो भी लेंगे वो नंबर तुरंत ऐड करो। लेफ्ट हैंड साइड में मैं ऐड कर देता हूँ, 2 लिया ना मैंने ऊपर, तो 2 ऐड कर दिया। चलो क्लियर। लास्ट ग्रुप को अभी नीचे लेने का टर्न आ चुका है। लास्ट ग्रुप को है हमारा 76, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ले लिया उसको नीचे। अभी यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे सेम डिजिट आना चाहिए, ठीक है। तो क्या लेना चाहिए यहाँ पे, 5 लू, 4 लू, 6 लू, क्या लेना चाहिए, 976 बनाना है ना हमको। तो देखो 6 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा आई थिंक, 4 लेंगे तो आई थिंक ओके हो जाएगा, राइट। 244 इंटू 4, 4 यहाँ लिया ना तो यहाँ भी 4, 244 इंटू 4 कितना आएगा, ओके। यहाँ पे आपका 976 वही तो चाहिए हमको। तो 244 इंटू 4 976, दैट्स इट, जीरो आ गया, आंसर इज रेडी। इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट रेडी हो चुका है, वो है 124। इज दैट क्लियर, ठीक है। कितने डिजिट का नंबर था ये, 5 डिजिट का नंबर था। चलो अभी 6 डिजिट पे जाते हैं। मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चाहे तो मैं एक एग्जाम्पल के बाद आगे बढ़ सकता था, दूसरा कुछ पार्ट शुरू कर सकता था, बट मैं चाहता हूं कि अगर आप ये मेथड लर्न कर रहे हो तो एक्सपर्ट बनो, फिर ही उसको छोड़ना है, राइट। तो आई होप आपने 4 डिजिट का कर लिया, 5 डिजिट का कर लिया, अभी 6 डिजिट का भी कर लेते हैं, देन हम आगे का पार्ट शुरू करेंगे। चलो ये नंबर है, अभी बहुत सारे लोगों को ऑलमोस्ट आइडिया आ चुका है क्या करना है। चलो नंबर लिखता हूँ, अभी मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। 1 7 5 5 6 1। चलो ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाया, परफेक्ट ग्रुप बन गए। यहाँ पे जीरो अटैच करने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड साइड से मैंने ग्रुप बनाया, ठीक है। चलो 17 क्या लू, 3 इंटू 3 लू, 2 इंटू 2 लू, या 4 इंटू 4 लू। आई थिंक 4 इंटू 4 परफेक्ट बैठेगा ना, 5 इंटू 5 लिया तो 25, 17 के लिए ज्यादा हो जाएगा, राइट। सो 4 इंटू 4 लेते हैं, 4 इंटू 4 16। ओके चलो ये आ गया आपका 1 प्लस, क्या ऐड करूँ, ऊपर 4 लिया ना तो ऐड कर दिया 16। अभी नेक्स्ट ग्रुप नीचे आ रहा है 55। तो गाइज मुझे 155 बनाना है, तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे, आई थिंक 2 लिया, 162 इंटू, सॉरी यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है हमको, एडिशन करना है, ठीक है। अभी 4 इंटू 4 कर दिया, 16 हो गया। अभी आता है 155। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, ओके, तो वो बन जाएगा 82 इंटू 2। ये 160 के आगे चला जा रहा है, मुझे चाहिए 155, तो 2 लेना ज्यादा हो रहा है तो 1 लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 81 इंटू 1, तो 81 इंटू 1 कितना होता है, ओके ओके, ये हो गया 4 और ये हो गया 7 0। तुरंत 1 ऐड करना है, मैंने 1 लिया ना ऊपर, 1 ऐड कर दिया, चलो कर दिया, 82 आ गया। नेक्स्ट ग्रुप को नीचे ला रहा हूँ 61, ठीक है। अभी बताओ तो मुझे यहाँ पे और यहाँ पे क्या होना चाहिए ताकि ये 7461 बन पाए, क्या लगता है आपको, 820 इंटू क्या लेना चाहिए ताकि 7461 बन जाए, ये 1 आइडिया देगा ना। देखो 9 लिया तो आई थिंक हो जाएगा ना, 829 इंटू 9, 9 इंटू 9 81, ओके, 2 परफेक्ट, 7461 हो गया। तो दैट्स इट, 829 इंटू 9 7461, रिमाइंडर 0, आंसर इज रेडी। 419 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट आपने परफेक्ट ढूंढ लिया है। 419 का स्क्वायर है ये 15
17556। इज दैट क्लियर? आपको ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट्स हम बताते हैं जो आपको सारे क्वेश्चंस में, इसमें कोई लिमिटेशन है क्या कि नंबर 5 डिजिट ही होना चाहिए, 4 डिजिट ही होना चाहिए, ऑड ही होना चाहिए, इवन ही होना चाहिए, कंपोजिट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। कोई भी नंबर मेरे सामने रख दो, मैं आपको स्क्वायर रूट निकाल दूंगा, ठीक है? और आप भी निकाल सकते हो अभी इस मेथड का यूज करके। तो इस टाइप के शॉर्टकट्स को आपको ज्यादा फोकस करना है जो सारे क्वेश्चंस के लिए या सारे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल हो। अननेसेसरी शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो, ठीक है? चलो, तो आई होप आप थोड़े फ्रेश हो गए होंगे मैथ्स करके थोड़ा सा, ठीक है? ओके, अभी ये सिर्फ ये नंबर्स का इंपॉर्टेंस तो है एग्जाम्स में, बट आपको आपका स्ट्रेटेजी जो है वो डिसाइड करना है। मतलब एग्जैक्टली आपको पढ़ना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना है, ठीक है? एंड वो फॉलो भी करना है, सिर्फ बनाना नहीं है, वो फॉलो भी करना है। और ये टाइम टेबल इसके अलावा, आपके क्लासरूम या ऑनलाइन लेक्चर्स के अलावा आपको बनाना है कि मैं क्लासरूम्स के अलावा या ऑनलाइन लेक्चर्स के अलावा 6 आवर्स पढ़ूंगा, 8 आवर्स पढ़ूंगा, राइट? ये आपको फिक्स बनाना है, ठीक है? और उसको फॉलो करना है। आप आपके हिसाब से जो भी सेक्शन पहले करना चाहो वो करो। आपको दोपहर में मैथ्स करना अच्छा लगता है तो मैथ्स करो, किसी को रात को मैथ्स करना अच्छा लगता है, किसी को इवनिंग में। इट इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मॉर्निंग में इंग्लिश ही करना है, आफ्टरनून में एलआर ही करना है। इट डिपेंड्स ऑन यू, बट डेली ईच सेक्शन को आपको टच करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? देन डू नॉट मिस एनी लेक्चर। आप कोर्स ज्वाइन करने के बाद कोई भी लेक्चर मिस मत करो। माना कि वो लेक्चर जब मिस हो जाता है वो आप बाद में देख सकते हो, यस देख सकते हो, बट गाइस हो सके तो डेली का डेली अगर आप पढ़ते हो ना तो आपका जो लोड है वो एकदम से ऐसे पैलअप नहीं होगा, राइट? आप डेली का डेली ही पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हर चैप्टर के ऊपर दूसरा चैप्टर डिपेंड होता है। तो लिंक टूटने नहीं देना कभी। थिंक थ्रू द क्वेश्चंस एंड क्रिएट योर ओन शॉर्टकट्स। वैसे ये जो शॉर्टकट जब बनते हैं ये कोई इंसान ही बनाता है ना, कोई भी शॉर्टकट मैथ्स का। और वो कैसे बनाता है? वो एक ही टाइप का प्रॉब्लम जब बार बार सॉल्व करता है, उसमें अच्छे से सोचता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि अरे ये स्टेप्स जो है अननेसेसरी हम कर रहे हैं, ये करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं करेंगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वो क्या करता है, 10-12 स्टेप्स का क्वेश्चन 2 स्टेप्स में सॉल्व करके दिखाता है और उसको हम शॉर्टकट मानते हैं। यही होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट्स बनेंगे अगर आप ठीक से कंसेप्ट पढ़ते हो, तो आप खुद के शॉर्टकट्स बना सकते हो। इतना थरली आपको कोई भी चैप्टर को लर्न करना है। देन डोंट यूज टू मेनी डाइवर्स रिसोर्सेज। बहुत लोगों को आदत होती है, ये भी बुक ले लिया, वो भी बुक ले लिया, ये भी टेस्ट सीरीज ले ली, वो भी ले ली, और इधर से भी पढ़ रहे हो। ऐसा करोगे तो सिर्फ एक होगा इसका रिजल्ट, और वो है कंफ्यूजन। आपके दिमाग में सिर्फ कंफ्यूजन होगा कि इनका मेथड अलग से, उनका मेथड अलग से। हमेशा ऐसे कोर्स के ऊपर आपको फोकस रहना है जिनका अलग से रिसर्च टीम, जो जैसे कि बहुत सारे फ्री में मिलते हैं मटेरियल्स इधर उधर आप देखते हो, बट उसमें मिस्टेक्स इतनी होती है गाइस। जैसे हम अगर कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, उसमें आप मोस्टली ऐसा होता है कि आपने सही सॉल्व किया बट उनका आंसर गलत दिया, और आप अननेसेसरी सोच रहे हो कि मेरा क्या गलत हुआ है, मेरा क्या गलत हुआ है, बल्कि बात ये होती है आपने सही किया और उनका आंसर गलत है, राइट? सो हमेशा एक ट्रस्टेड सोर्स को आपको फॉलो करना चाहिए। देखो, टाइम में हमारी अलग से रिसर्च टीम है जो बैंक एग्जाम्स को ट्रैक करती है, उनका सिलेबस ठीक से पढ़ती है, और उस हिसाब से हम मटेरियल बनाते हैं, टेस्ट सीरीज बनाते हैं। तो आपको, अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको कोई भी दूसरा बुक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे टेस्ट, इतना सारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मटेरियल आपको मिलेगा कि आपको जरूरत कभी नहीं पड़ेगी कोई दूसरा पीस ऑफ पेपर भी खरीदने की। एंड हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हम देते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देते हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन हम प्रोवाइड नहीं करते हैं जिसका सॉल्यूशन हमने आपको दिया नहीं। और वो दिया हुआ सॉल्यूशन में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम फैकल्टीज है ही आपका डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है? स्टडी मैथमेटिक्स इन अ डिफरेंट में, क्योंकि मैंने खुद बोला कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स होता है, यस, बट जैसे आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा वैसे नहीं पढ़ना है, इसको अलग तरीके से पढ़ना है। वहां स्टेप्स के मार्क्स थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक स्टेप्स के मार्क्स रहते थे, और उस हिसाब से हम हमारे ब्रेन को आदत डालते थे कि ये स्टेप के बाद वो करना है, क्योंकि स्टेप स्किप की तो मार्क्स आपके कट होते थे। बट यहाँ स्टेप्स के मार्क्स नहीं है। तो आपको थोड़ा सीखते हुए आपके ब्रेन को ऐसी आदत लगानी है कि अननेसेसरी स्टेप्स अवॉइड करनी है, अननेसेसरी लिखना नहीं है, पेपर वर्क को अवॉइड करना है। तो मैथमेटिक्स उस हिसाब से आपको पढ़ना है। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वे होता है, आपको क्लासरूम्स में आप एक्सपीरियंस करोगे ही।
डेली प्रैक्टिस ऑफ ईच सेक्शन मस्ट, मैंने बोला है डेली क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ये डेली होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 दिन से मैंने क्वांट किया ही नहीं या जीके पढ़ा ही नहीं। ये सारे सब्जेक्ट्स, खास करके जीके तो डेली पढ़ना ही चाहिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन होता है कि एग्जाम जब आएगा ना तो 4-5 दिन में मैं पिछले 6 महीने का जीके, वो पीडीएफ फाइल है मेरे पास, मैं पढ़ लूंगा। ऐसे कभी जीके नहीं पढ़ा जाता। जीके हमेशा डेली पढ़ना चाहिए। आपका डेली न्यूज़पेपर, डेली हम मैगजीन्स आपको प्रोवाइड कर, मंथली मैगजीन्स प्रोवाइड करते हैं, डेली जीके अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। डेली जब जो जीके पढ़ता है उसी का जीके ज्यादा स्ट्रांग होता है। देन डोंट थिंक ऑफ कट ऑफ्स एट दिस स्टेज। एट दिस स्टेज क्या, कभी भी नहीं सोचना है मैं तो कट ऑफ्स ये वर्ड आपके डिक्शनरी से डिलीट ही कर दूं। कट ऑफ को कभी देख के पढ़ना नहीं है गाइस। कभी भी टारगेट सिर्फ आपका यही होना चाहिए कि मुझे जो 1 आवर मिलेगा उस 1 आवर में मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा। दैट इज योर टारगेट। ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम फिर 70 का कट ऑफ लगा था तो मुझे 70 का टारगेट रखना है। नो, आपका टारगेट सिर्फ एक होना चाहिए, जितना टाइम मुझे आईबीपीएस दे रहा है उस टाइम में मैं मेरा बेस्ट दूंगा। बेस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है, दैट्स इट। अगर आप ये डिसाइड करते हो तो आप डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बैंक एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। कट ऑफ्स को कभी रेफर भी नहीं करना कि लास्ट ईयर का ये कट ऑफ था, फिर ये बैंक का कट ऑफ क्या था। क्या करोगे जान के एसबीआई का कट ऑफ क्या था? अगर सपोज लास्ट ईयर में एसबीआई 70% पे क्लोज हुआ था तो क्या आप 70% का टारगेट रखोगे? नहीं, आपका टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम मार्क्स इन पर्टिकुलर टाइम, दैट्स इट। यही आपका टारगेट रखो, क्योंकि ये कट ऑफ्स की अलग अलग तरीके से वेरी होते हैं, कभी हाई होता है कभी लो होता है। यू डोंट थिंक ऑफ कट ऑफ, आपका बेस्ट दो हमेशा। क्वेश्चन सिलेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सॉल्विंग द क्वेश्चन। देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम जो होती है ना, वहां पे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और टाइम जो उसके लिए दिया जाता है वो बहुत कम होता है। आपने देखा ना, मैंने पेपर पैटर्न बताया 20 मिनट्स और 35 क्वेश्चंस। तो ऐसे वक्त पे आपको इजी क्वेश्चंस के ऊपर टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि इजी क्वेश्चन जल्दी होंगे और इजी क्वेश्चंस जब जल्दी होंगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप कर सकते हो। डिफिकल्ट क्वेश्चन करोगे तो 2 मिनट में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, बट 2 मिनट में 4 इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके भी 1 मार्क ही मिलने वाला है, इजी क्वेश्चन सॉल्व करके भी 1 मार्क मिलने वाला है। तो इजी क्वेश्चंस के ऊपर टारगेट रखना है। देखो गाइज, आपको एक प्रैक्टिस करनी है। जब आप टेस्ट देते हो, हम आपको जो भी टेस्ट प्रोवाइड करते हैं उसमें मेक अ प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्टिंग अ रेगुलर पेपर इनटू एन इजी क्वेश्चन ओनली पेपर। आपका पेपर इजी कैसे, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन को दूर रहना है, आपको हाथ भी नहीं लगाना डिफिकल्ट क्वेश्चन को। देखो कोई भी पेपर में इजी क्वेश्चन ज्यादा होते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन से, सिर्फ कुछ छुपे होते हैं इधर उधर, आपको ढूंढ के निकालना है। राइट, मैंने बहुत सारी बैंक एग्जाम्स दिए गाइस, ट्रस्ट मी। इजी क्वेश्चंस का नंबर ज्यादा होता है डिफिकल्ट। अगर मैं थोड़ा आपको एक रफ आइडिया दूं, अगर सपोज 100 क्वेश्चंस है तो 100 क्वेश्चंस में से 65 to 70 इजी क्वेश्चंस होते हैं एंड 30 डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। जो स्टूडेंट वो 65 या 70 क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा, बस जॉब उसका है। और जो स्टूडेंट वो 30 में से कोई 4-5 भी पकड़ लेता है डिफिकल्ट क्वेश्चन, 30 डिफिकल्ट क्वेश्चन में से, बस उसका पेपर खराब हो जाता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, इजी क्वेश्चन कौन सा, डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन सा, ये कब कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये हम आपको क्लासरूम्स में बताते हैं। हम आपको सारे लेवल की प्रैक्टिस करवाते हैं, इजी डिफिकल्ट, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इजी इजी क्वेश्चन ही सिखाते हैं क्लासरूम में। अगर आप बुक देखते हो उसमें सारे लेवल के क्वेश्चन है, अगर आप हमारे हैंडआउट्स देखोगे उसमें सारे लेवल्स के क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको काम में आएगा अब जब आपको आपकी कंसेप्ट स्ट्रांग बनाएगा। और अगर आपकी कंसेप्ट स्ट्रांग बन गई, घर पे आपने बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो उससे आपकी कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग बन जाएगी। एंड एक बार आपकी कंसेप्ट स्ट्रांग बन गई तो इजी क्वेश्चंस आप यू सॉल्व कर लोगे मिनटों में। राइट, सो इजी क्वेश्चन को फोकस करना है एंड आपको एंड तक जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते हैं, बीच में डिफिकल्ट आया तो उसको भी सॉल्व करेंगे और एंड तक पहुंचते ही नहीं पेपर के। और खास बात यह है कि मोस्टली इजी क्वेश्चन लास्ट में ही होते हैं, क्योंकि आपको पता है पेपर सेट करते वक्त उनको भी पता है कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन छुपा के रखना है। राइट, तो एंश्योर यू रीच द एंड ऑफ द पेपर एंड एग्जॉस्ट ऑल द इजी क्वेश्चन। एक भी इजी क्वेश्चंस आपका स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चंस को स्किप करना मतलब इट इज अ क्राइम। राइट, आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी ऐसा कहा जाएगा। फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन को टच नहीं करना है, इजी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ठीक है, देन
एक्यूरेसी एंड अटेम्प्ट्स, ये दोनों चाहिए होता है गाइस। ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी पैरामीटर्स है, क्योंकि जब आप एक्यूरेसी बढ़ाने जाओ तो धीरे धीरे सॉल्व करोगे अच्छे से फोकस करके तो अटेम्प्ट्स कम होंगे, अटेम्प्ट्स बढ़ाने जाओ फास्ट फास्ट सॉल्व करोगे तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी, राइट। तो ये एक एक्यूरेसी के बढ़ाने जाते हो अटेम्प्ट्स कम होते हैं, अटेम्प्ट्स को बढ़ाने जाते हो एक्यूरेसी कम हो जाती है। इसका बैलेंस जो है वो आपको रखना है, और वो बैलेंस कैसे आएगा, जब आप कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओगे। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट्स भी देगा एंड एक्यूरेसी भी देगी, दोनों आपको ऊपर लेके जाना है, ठीक है। देन एनालाइजिंग दी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत, एक बार आपका सब सिलेबस पढ़ के हो गया तो आपको बहुत सारी मॉक टेस्ट देनी है। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको समझ में आता है कि आपकी कहाँ कमी रह रही है, क्या चीज आपको कम, कहाँ पे फोकस करना है, ये करना है या वो करना है, आपको वो ठीक से देखना है। एंड हर एक, मैंने बोला है, हम जितने भी स्टडी मटेरियल आपको देते हैं, बुक हो, सेक्शनल टेस्ट हो, मॉक टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपको वो सॉल्यूशन को यूटिलाइज करना है। बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर राइट आया तो ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखते नहीं, उनको लगता है आंसर राइट आया तो सॉल्यूशन क्यों देखे। बट गाइस, आपको वैसे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखना है, क्या पता आपने जैसे सॉल्व किया हो वो थोड़ा लेंदी वे है और शॉर्टकट बुक में दिया हो कहीं, बुक के सॉल्यूशन में। तो हाँ, अगर आपको बुक का सॉल्यूशन देखने के बाद अच्छा नहीं लगता कि नहीं ये नहीं, ये मेरा ही मेथड अच्छा है, इसमें मैं कंफर्टेबल, देन इट्स ओके। बट आप, आपका आंसर रॉन्ग आए या राइट, आप प्लीज उसका सॉल्यूशन हमने जो प्रोवाइड किया होता है वो प्लीज देखा करो, ठीक है। अभी बात करते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस में या ऑफलाइन क्लासेस में कैसे टीचिंग मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम फैकल्टीज की बात करते हैं, वेल ओरिएंटेड एंड हेंस मोर ऑर्गेनाइज्ड फैकल्टी, राइट। गाइस, हमने खुद बैंक एग्जाम दिया है और उनको क्लियर भी किया है, ठीक है, तो हमको पता है कि क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है और कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, दैट वी नो वेरी वेल। हम सालों से ट्रैक करते आ रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स को, तो वी नो वेरी वेल कि कौन से टॉपिक आपको कम एफर्ट्स में ज्यादा स्कोर दिला सकते हैं। तो आपको बहुत हमारे एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलेगा। एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ईच टॉपिक, हम कभी भी डायरेक्टली हाई लेवल क्वेश्चन को कभी स्टार्ट नहीं करते, हम हमेशा उसका थियरी पार्ट पहले डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, देन उसके ऊपर के थोड़े बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर धीरे 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 लेवल को बढ़ाते हैं। बाकी जगह पे अगर आप देखते हो डायरेक्टली ये पेपर, ये टॉपिक पढ़ा के हो गया और डायरेक्टली लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते। हम लेवल बाय लेवल क्वेश्चंस का हमने स्ट्रक्चर, इनफैक्ट आप बुक देखोगे, स्टडी मटेरियल देखोगे, उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी लेवल बाय लेवल दिया है, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, मतलब आपको ये समझ में आ गया तो फिर ये सॉल्व करो, ये समझ में आ गया तो ये सॉल्व करो, इस टाइप से हमने हमारे पूरे कोर्स स्ट्रक्चर को फ्रेम किया हुआ है। देन इंटरव्यू, अगर आपका मेंस क्लियर हो जाता है और आप पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हम इंटरव्यू के लिए भी आपकी प्रैक्टिस लेते हैं। देन स्पेशल सेशंस ऑन टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज। टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो वो कैसे देनी है, कैसे स्ट्रेटजी रखनी है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस पहले कर रहे हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस लास्ट में कर रहे हैं, ये सब हम वहां पे आपको डिटेल में बता देंगे। जीए डेली इसका हम लेते हैं मंडे टू फ्राइडे, एंड जनरल साइंस का भी, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ लोग बैंकिंग के साथ एसएससी के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, तो हमने जनरल साइंस का भी एक एक्टिविटी शुरू किया है। जीए एंड जनरल साइंस, ये दोनों भी चीजें आपको मंडे टू फ्राइडे हम देते हैं। मतलब आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश भी चलता है और उसके साथ साथ जीए जनरल साइंस भी चलता है, ठीक है। पूरा कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, टाइमिंग क्या है, वो धीरे धीरे मैं आपको लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर्स दूंगा, तब आपको क्लियर आइडिया बताया जाएगा कि एग्जैक्टली टाइमिंग्स क्या होते हैं, जीके का लेक्चर कौन से दिन पे कौन से टाइम पे होता है, पूरा डिटेल में आपको सब कुछ बताया जाएगा। अभी बात करते हैं कि आपको कितने लेक्चर्स मिलते हैं, कितनी टेस्ट मिलती है, नंबर ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। देखो, आपको टोटल 125 ऑनलाइन क्लासेस मिलती है, जिसमें 95 प्रीलिम्स के लिए और 30 मेंस के लिए। अभी आप कहोगे कि प्री एंड मेंस का सिलेबस तो सेम है, तो ये ऐसे सेपरेट सेपरेट क्यों किया। ये डिफिकल्टी लेवल के ऊपर देखो, ये जो 95 आपको दिख रहा है ना गाइस, इसमें सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, बट मेंस के लिए एक एक्स्ट्रा प्रिपरेशन, थोड़ा हायर लेवल, डिफिकल्ट लेवल का प्रिपरेशन के लिए ये 30 लेक्चर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। स्टडी मटेरियल की बात करें, आपको 11 बुक्स दिए जाते हैं, ई बुकलेट्स जिसको हम बोलते हैं, एंड ईच ई बुकलेट में डिफरेंट डिफरेंट ई चैप्टर्स होते हैं, उसमें अलग अलग एक्सरसाइज होता है और हर एक्सरसाइज का, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको हम देते हैं। डाउट सॉल्विंग,
अगर आपको कोई डाउट आता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमें आपको फैकल्टीज की ईमेल आईडी, टेलीग्राम आईडी दिया जाता है, आपका लाइव डाउट सेशन भी हम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, आपको जो भी डाउट है आप टेलीग्राम के थ्रू भेज दो, हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है, एंड अगेन दिस इज वेरी न्यू थिंग, वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइव डाउट सेशन। आपका 1-to-1 हम लाइव डाउट भी क्लियर करते हैं। ठीक है, देन मॉक टेस्ट 130 गाइस, बहुत हो गई 130 टेस्ट, मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज है, आईबीपीएस पीओ के लिए, क्लर्क के लिए, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपको 130 मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट अगर देखा जाए तो 190 सेक्शनल टेस्ट, मतलब क्या, हर एक टॉपिक के ऊपर, जैसे सिंपल इक्वेशन हो गया तो उसके अलग से टेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेजेस हो गया तो उसका अलग से टेस्ट, कुछ टॉपिक्स बहुत छोटे होते हैं तो उसको 2-3 टॉपिक्स, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ टॉपिक्स, राइट। तो अलग अलग टॉपिक वाइज आपको टेस्ट देनी है। आज सपोज आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने लेक्चर अटेंड किया, तो घर पे प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का टेस्ट दो। वो टेस्ट देने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी ये टॉपिक का प्रिपरेशन ठीक से हुआ है या और कुछ मेहनत करना बाकी है। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन गाइज आपको दिया जाता है, जिसमें आपका जीके बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपको आपके एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है ये सब उस मैगजीन में होता है, राइट। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये मेरे काम का है या नहीं है, या पूरा न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड। बट ये मैगजीन की खास बात ये है कि बैंकिंग एग्जाम्स के जीके के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो उसमें आपको सब दिया जाता है, राइट। तो अगर आप वो मैगजीन पढ़ते हो तो समझ जाओ कि आपका उस मंथ का जीके परफेक्ट है। ठीक है, 6 मैगजीन्स आपको दिए जाते हैं। डेडिकेटेड स्टूडेंट होम पेज है हमारा, ऑनलाइन फैसिलिटी इज टोटली अप टू डेट। आप यहाँ पे स्टडी मटेरियल देख सकते हो, ई बुक्स इशू कर सकते हो, वीडियो क्लासेस देख सकते हो, ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट देख सकते हो। जी अपडेट्स तो आपको डेली के डेली मिलते ही है, हम डेली अपडेट्स देते हैं गाइस, कि कल के दिन क्या हुआ आपको वो कल सुबह मिल जाएगा, कि कल ये हुआ था, ये हुआ था, ये करंट अफेयर्स एंड हम डेली जीके अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। और ये सारी चीजें हम हमारे मोबाइल के ऐप पे भी देते हैं। टाइम फॉर बैंक करके हमारा मोबाइल ऐप है, आप डाउनलोड प्लीज कर लेना। वहां पे आपको, अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाता है, और ये सारी स्टूडेंट होम पेज की सारी चीजें आपको यहाँ भी मिल जाएगी। और सबसे खास बात ये है कि ये सारी फैसिलिटी का जो सपोर्ट है आपको 18 मंथ्स के लिए मिलता है। मतलब भले ही आपका कोर्स खत्म हो गया है, फिर भी आप ये फैसिलिटीज यूज कर पाओगे 18 मंथ्स तक। कोर्स नॉर्मली 3 to 4 डिपेंड करता है, 4 आवर से या 2 आवर से, तो मैं अप्रोक्सीमेटली अगर बात करूँ 4 मंथ्स के आसपास कोर्स सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। बट ये ऑनलाइन फैसिलिटीज जो है वो आपको 18 मंथ्स तक मिलेगी। इसके बारे में डिटेल अगर आपको जानना है तो प्लीज हमको कॉन्टैक्ट करो। तो गाइज ये है हमारी फ्रेश ऑनलाइन बैचेस। देखो 3 अगस्त को हम एक बैच शुरू कर रहे हैं जो मंडे टू सैटरडे होगा, 6 PM to 8 PM, 2 आवर्स। ठीक है, अगेन अभी कुछ कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी चाहिए, जल्दी सिलेबस कर रहे हैं, मतलब अभी ज्वाइन करेंगे तो आईबीपीएस पीओ के पहले ही, बहुत पहले उनको सिलेबस फिनिश करके चाहिए, तो उनके लिए भी हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करना शुरू किया है। 6 अगस्त मतलब ये जो है वो 4 आवर्स डे रहेगा गाइस, मंडे टू फ्राइडे। देखो 3:15 to 5:15 एक क्लास होगा, एंड 6 PM to 8 PM और एक क्लास होगा। 6 PM to 8 PM नॉर्मली जीके रहेगा, बट ऐसा नहीं, जरूरी नहीं जीके ही हो सकता है उसकी जगह दूसरा टॉपिक भी लिया जाए, बट शायद आप बोर ना हो जाओ, तो नॉर्मली हम ऐसे करते हैं कि पहले मैथ्स लिया तो बाद में जीके या इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स रखते हैं, तो ताकि आपको बोर ना हो। ठीक है, तो बैंक पीओ की और एक 10 अगस्त से हम बैच शुरू कर रहे हैं, जिसका टाइम आप देख सकते हो, कुछ को मॉर्निंग स्लॉट अच्छे लगते हो तो 9 AM to 11 AM एक बैच है, और 11:45 to 1:45 एक बैच है। क्लियर, तो ये हो गया हमारी अपकमिंग बैचेस के बारे में डिटेल। ठीक है, इन बैचेस के टाइमिंग, फीस एंड और डिटेल अगर आपको जानना है, लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर्स आएंगे, आप वहां पे कॉन्टैक्ट करो, तो पूरा डिटेल वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा रिजल्ट। ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, इन्होंने अभी रिसेंटली बैंक एग्जाम्स को क्लियर किया है। ठीक है ना, एसबीआई पीओ देख रहे हो आप, एसबीआई पीओ में हमारे सिलेक्शंस, देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई। ठीक है, ये इसके अलावा भी कुछ लोगों के फोटोज नहीं है, तो हम मैं लिस्ट भी बताता हूँ। देखो ये अभी रिसेंट सिलेक्शन है हमारे यूनाइटेड इंडिया कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कंपनी में, एसएससी में, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में, देन शामराव विठल कोऑपरेटिव बैंक में भी हमारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, सारस्वत बैंक में हुआ है, आईबीपीएस आरआरबी में हुआ है, फूड कॉर्पोरेशन में हुआ है, नाम देख रहे हो आप। ठीक है,
अगेन फूड कॉर्पोरेशन में फेडरल बैंक, देन SBI PO, ठीक है, TCS एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी में भी हमारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। सो एग्जाम्स की कमी नहीं है गाइस, देख रहे हो आप कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में इन्होंने करके दिखाया है, ठीक है। एंड देयर आर सो मेनी रिजल्ट्स, सारे के सारे रिजल्ट्स अभी यहाँ पे डालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो हाउ टू कॉन्टैक्ट अस, हमारी टोटल 2 ब्रांचेस है, कॉलेज रोड में एंड नासिक रोड में। एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके सामने है, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और प्लीज हमको कॉन्टैक्ट करो, आपको यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। प्लीज नोट डाउन द नंबर्स। चलो, सो गाइस अगर आपको, आप YouTube तो यूज कर ही होंगे राइट, सो ये है हमारा YouTube का लिंक, ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस, जो भी हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, वर्कशॉप हो गया या वेबिनार्स हो गए, वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट कुछ टॉपिक्स के भी लेक्चर, परसेंटेजेस, इक्वेशंस, मैथ्स के भी आपको वीडियोस जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो प्लीज टाइम इंस्टीट्यूट नासिक सब्सक्राइब करो। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ योर क्वेश्चंस, ठीक है। आपका जो भी क्वेश्चन है आप टाइप करके भेज सकते हो गाइस। ओके, अक्षय यू आर आस्किंग व्हेन इट विल स्टार्ट, अभी मैंने बताया, ठीक है। बैच के डिटेल्स आपके सामने आ गए हैं, ओके। 6 अगस्त एंड आप चाहे तो नंबर, यस आप डेफिनेटली नंबर्स पे कॉल करो, आपको और भी डिटेल दिया जाएगा कि किस दिन पे स्टार्ट होगा। एंड फीस के बारे में अगर आपको जानना है, डेट्स तो मैंने बता दी, डेट्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर, आप प्लीज फीस के बारे में हमको प्लीज कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। इज देयर एनी स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच? फिलहाल तो ऐसा कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट अगर आप बी मैकेनिकल हो तो आई डोंट नो व्हाट इज योर एग्जैक्ट एजुकेशन बैकग्राउंड, बट मैकेनिकल के लिए कोई ऐसा पोस्ट नहीं है फिलहाल तक। जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है उसमें एग्रीकल्चर है, आईटी है, लॉ है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ठीक है। मैकेनिकल रिलेटेड कोई नहीं है फिलहाल बैंक में, तो कोई ऐसा स्पेशल पोस्ट नहीं, बट आप डेफिनेटली आप पीओ के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पीओ के लिए आप बी हो तो आपको। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन गाइस? Okay, now questions are visible. Neha is asking, hello sir, is there any MBA in banking and finance stream? MBA,
यस डेफिनेटली आपको इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी नेहा। यस डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो उनको। फिलहाल हम बैंकिंग के ऊपर अगर देखा जाए तो मानसी सिंह, हाउ मेनी fees are there to get selected in banking exam or to clear the exam? So Mansi, there are total phases. Clerical की बात करूँ तो there are 2 phases and PO की बात करूँ तो there are 3 phases. Clerical में आपको सिर्फ phase 1 मतलब प्री एंड मेंस होगा, पीओ में प्री मेंस के साथ इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, आपको तीनों फेजेस क्लियर करनी पड़ेगी फिर आपको पीओ बनना है। I'm a BCom SY student. I give exam and pass the exam. Then what's next? Because I'm not a graduate. स्वप्निल, देखो आपको इंटरव्यू के वक्त आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। तो आप जैसे कि अभी कोई एग्जाम आता है तो पहले उसका प्री होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है और तब आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो एड में क्लियरली मेंशन किया होता है कि जब आप इंटरव्यू को आओगे तब आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट है ऐसा दिखाना पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ बैंक जो है वो कुछ मंथ्स का टाइम भी देती है। आप एक बार आईबीपीएस पीओ का या रेफरेंस के लिए कोई भी आईबीपीएस की साइट पे जाके एक नोटिफिकेशन जब आप पढ़ लोगे ना तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आपको वहां मिल जाएंगे कि कौन से डेट से लेके कौन सी डेट तक आपको आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देना है। बट एज अ प्रैक्टिस मैं तो देखता हूँ कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर मतलब अगर लास्ट ईयर में हो तो स्टूडेंट्स तभी से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। ग्रेजुएशन आपको तभी दिखाना पड़ेगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जब आप इंटरव्यू को जाओगे तब। ठीक है, if unfortunately some bank is closed for forever, Ritesh is asking, don't worry Ritesh, it is a it comes under government, आपका जॉब ऐसे नहीं चला जाएगा, आपको दूसरे बैंक्स में शायद अगर ऐसा होता है, ऐसा कभी होगा नहीं, आप कह रहे हो कि अगर कोई बैंक बंद ही पड़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, डोंट वरी, इट विल दोज एम्प्लॉयज विल बी एब्सॉर्ब टू सम अदर बैंक्स। ठीक है, ओके, थैंक यू नेहा। अक्षय इज सेइंग सर डेली यू आर गोइंग टू टेक अ लेक्चर। यस डेली लेक्चर्स होंगे अक्षय। डेली मैथ्स, ऐसा नहीं कि मैथ्स का ही डेली होगा, मैथ्स आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा। सबसे खास बात है कि हम पूरा वीकली शेड्यूल देंगे। आप जब ऑनलाइन लॉगिन करते हो तो आपको एक शेड्यूल मिलता है जिसमें दिख जाएगा कि कौन से डेट पे कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो डेली मैथ्स नहीं होगा बट यस डेली लेक्चर्स जरूर होंगे। ठीक है, संजीव इज आस्किंग ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेजेस होने चाहिए। संजीव डोंट वरी, आपको परसेंटेजेस का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ग्रेजुएशन के मार्क्स आपके कितने भी हो आप ये एग्जाम्स दे सकते हो। मानसी, which exam you are talking about, Mansi? Will you help us to solve maths problem? Yes, definitely, Mansi, हम definitely जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस है वो आपको बताते हैं कि कैसे उसको फास्ट सॉल्व करना है। हम स्टेप बाय स्टेप भी बताते हैं। जब आपको कंसेप्ट समझ में आ गई तब हम उसको फास्ट कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको बताया जाता है। ठीक है, Ankita is asking, I completed diploma, so can I eligible for interview? Now I am studying in third year. Ankita, see, when you are going for the interview, graduation certificate is necessary. Sometimes they allow कि अगर आप कुछ महीने का आपको पीरियड दिया जाता है कि 1 मंथ के बाद लाके दो, 2 मंथ्स के बाद लाके दो, तो इसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको आईबीपीएस के कॉल सेंटर पे पूछना पड़ेगा। मोस्टली 99% आपको ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट लगता है इंटरव्यू के वक्त। ठीक है, तब अगर आपको लगता है कि 3 to 4 मंथ्स में मेरा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आ जाएगा या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जो भी है वो हाथ में आ जाएगा, तो वो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। जैसे अभी आईबीपीएस पीओ का एग्जाम निकला है, अक्टूबर में एग्जाम होगा, दिसंबर नवंबर में उसका मेंस होगा,
फिर 1 या 1.5 मंथ्स के बाद फिर उसका इंटरव्यू होगा, मतलब वो 2021 में ही जाएगा। तो अगर आपको लगता है जैन फेब में आपका इंटरव्यू का, आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको आपके हाथ में आ जाएगा, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। बट आप उसका वेट मत करो, आपको आपका प्रिपरेशन शुरू कर देना है, राइट? अगर आप अभी से प्रिपेयर करो तो यू शुड बी रेडी फॉर द कमिंग एग्जाम्स इन 2020, राइट? 2021 में भी जैन फेब में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अभी तो मैंने सिर्फ ये दिसंबर अक्टूबर नवंबर का बताया, नेक्स्ट ईयर में अगेन जैन फेब में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी, तो वो आप ग्रैब कर सकते हो। दर्शन, पीओ के लिए कितने अटेम्प्ट्स होते हैं? दर्शन, इट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी। अगेन आईबीपीएस के जो ऐड आता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के, जैसे ओपन के लिए 3 अटेम्प्ट्स, ओबीसी के लिए 5 अटेम्प्ट्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अगेन एग्जाम्स में भी अलग, क्लरिकल के लिए डिफरेंट नंबर होता है, पीओ के लिए अलग सा नंबर होता है। अगेन वो एडवर्टाइजमेंट में देते हैं सब डिटेल्स, एंड एवरी ईयर ये चेंज भी हो सकता है। तो अगर मैं 2019 का डेटा आपको बता दूं, शायद वो 2020 में बदल जाए। तो फिलहाल आप डेफिनेटली वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो फॉलो करो, उसमें क्लियरली मेंशन किया जाता है कि इतने अटेम्प्ट्स, इतने ये कास्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए इतने अटेम्प्ट्स। मैं रेफरेंस के लिए आपको बताता हूँ, ओपन कैटेगरी के लिए एसबीआई पीओ के 3 अटेम्प्ट्स, एंड रिमेंबर अटेम्प्ट्स तभी काउंट किया जाता है जब आप मेंस देते हो। अगर आप प्री में सपोज अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए तो वो आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाता। अगर आप मेंस में फेल हो जाते हो तो वो आपका अटेम्प्ट काउंट किया जाता है। इज दैट क्लियर दर्शन? Banking exams are online or offline? Mansi, it is an online exam. संजीव, नो क्राइटेरिया ऑफ मार्क्स, आपके मार्क्स कितने भी हो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। बैंकिंग एंड इनकम टैक्स एग्जाम, स्वप्निल, डिफरेंट एग्जाम से ही है, सेम नहीं है, बट अगेन उसमें भी आपको एप्टीट्यूड जरूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है? साक्षी इज आस्किंग एमबीए सीईटी एंड बैंकिंग के एग्जाम्स का स्टडी मटेरियल सेम है क्या? ओके, सो साक्षी, अगर यही क्वेश्चन आप मुझे 2 इयर्स पहले पूछते तो मैं हाँ बोलता, बट अभी बैंकिंग का थोड़ा पैटर्न एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस बदल गए, तो सीईटी से थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा मटेरियल। अगर आप देखते हो सीईटी का डिफरेंट है और बैंक पीओ का डिफरेंट है। थोड़ा बैंक पीओ में लेवल जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि सैलरी भी बढ़ रही है उनके जॉब्स की, और उस जॉब का इंपॉर्टेंस भी बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रक्चर जो है वो सीईटी से थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। तो मटेरियल हम डिफरेंट डिफरेंट, हमारे जितने भी कोर्सेज हम ऑफर करते हैं टाइम में, उन सब का मटेरियल डिफरेंट होता है। अगर आप बाकी मार्केट में जाओ तो एप्टीट्यूड का एक सिंगल बुक मिलता है, कैट के लिए भी वही, सीईटी के लिए भी वही, बैंकिंग के लिए भी वही। बट हम, अगर आप हमारा स्टडी मटेरियल देखते हो, वो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च टीम्स है हमारी, और उस हिसाब से हम मटेरियल को रेगुलरली अपडेट करते हैं, ठीक है? ओके, सो गाइज, आपको ये आज का कैसा लगा वेबिनार? प्लीज एक फीडबैक, एक लिंक आपके सामने आ रहा होगा, ठीक है? इस लिंक पे जाके आप आज के वेबिनार का फीडबैक दे सकते हो। आपकी जो भी क्वेरीज है वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स मैंने दिए हैं, उस पे जाके आप दे सकते हो, ठीक है? प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट फीडबैक। आपके सामने आ रहा है लिंक? संजीव, ईयर में कितने बार जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलता है? संजीव, मोर देन 10 टाइम्स तो आप पकड़ के ही चलो, इतनी अपॉर्चुनिटीज आपको मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 10 एग्जाम्स तो एनी हाउ ईयर में कंडक्ट होती ही है बैंक एंड इंश्योरेंस सेक्टर की, ठीक है? ओके, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार, थैंक यू।